Hello everyone, welcome to PW Only IS. So let's continue this art and culture series for संभव बैच. बिल्कुल संभव है, हम जब साथ मिल करके चलेंगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा. So we are working hard and we are working together for your selection. So I need your cooperation as well. And in our previous discussion, we had talked about a very important section from art and culture, which was important for pre, but also equally for mains examination. And that was the first part of Indian architecture and sculpture. And we had talked about Mauryan and post-Mauryan architecture and sculpture, which was actually mainly related to the Buddhism. And today in this session, we are going to cover up remaining part, which is related to the temple architecture and sculpture and Indo-Islamic architecture. So let's continue today's session. So let's start with temple architecture and sculpture, which is related to the Puranic Hinduism. So हम डिस्कस करेंगे temple architecture and sculpture and Indo-Islamic architecture, but not sculpture, because Islamic artists, they were not actually allowed to construct or to sculpt idols to decorate their buildings. Islamic artist को इजाजत नहीं होती थी कि वो idols या मूर्तियां बनाएं और इमारतों को सजाएं. So that's why we don't get sculptural part of Indo-Islamic architecture, which was mainly developed in India by the Delhi Sultans and the emperors who belonged to the Mughal Empire. So we'll be talking mainly about temple architecture and sculpture and Indo-Islamic architecture, but not sculpture. And they had, Islamic artists, they had their own patterns of decorating their buildings. So we'll be talking soon about all those things. So temple architecture and sculpture, and this part of Indian architecture is actually related to the Puranic Hinduism. Puranic Hinduism, say, Puranic Hinduism started taking shape around 2200 years back. Puranic Hinduism. And Puranic Hinduism came to be mainly based on the mythological number of mythological stories taken mainly from Hindu Puranic textbooks or Hindu mythological textbooks. So mythological stories from Puranas. And we have as many as 18 big Puranas and 18 smaller Puranas called Mahapuran or Upapuran. So altogether we have 36 Puranas. कुल 36 पुराण है, जिसमें 18 मेजर है और 18 माइनर है. तो मेजर पुराणास को हम महापुराण बोलते हैं और जो छोटे छोटे पुराण हैं उन्हें उप पुराण कहा जाता है. तो उप पुराणास आर ऑफ लेसर इंपॉर्टेंस वाइल महापुराणास आर ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस, लाइक भागवत पुराण, विष्णु पुराण, गरुण पुराण, शिव पुराण, शिवस्कंद पुराण, Brahma Puran, Brahmavaivarta Puran. So we have number of Puranas, 18 Maha and 18 Uppuranas. And Puranas are mainly related to the mythological stories. And also the central theme of Hindu Puranic religion or Hindu Puranic Dharma is all about the concept of Bhakti. तो हिंदू पौराणिक धर्म ये भक्ति के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और भक्ति का सेंट्रल थीम है नंबर 1, डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन बिफोर द चोजन डाइटी. और आपके जो चुने हुए फेवरेट देवता हैं उनके सामने अपने आप को डिजायरलेस, इच्छा रहित होकर कंप्लीटली आप अपने आप को डिवोशन में दे दीजिए. तो डिजायरलेस एंड कंप्लीट डिवोशन बिफोर द चोजन डाइटी इज व्हाट वी नोन एज फर्स्ट
important element of bhakti. So first important element of bhakti is desireless and complete devotion before the God, like desireless and complete devotion of Bhakta Prahlad towards Lord Vishnu, Bhagwan Vishnu, and desireless and complete devotion of Lord Hanuman towards Bhagwan Shri Ram, and desireless and complete devotion of Mirabai towards Bhagwan Shri Krishna. So desireless and complete devotion. And another element of bhakti is to establish loving and friendly relationship, loving and friendly relationship with the God, with the chosen deity, like loving and friendly relationship of Sudama towards Bhagwan Shri Krishna or Arjuna towards Bhagwan Shri Krishna. So we have two important, very important elements of the concept of bhakti. में एक है डिजायरलेस और कंप्लीट डिवोशन और दूसरा है लविंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द गॉड्स एंड गॉडेसेस और योर चोजन डाइटी. एंड फॉर दिस पर्पस देखिए, और भक्ति, और फिर भक्ति के दो एलिमेंट्स, दो ब्रांचेस निकलते हैं. भक्ति का एक ब्रांच होता है जिसको बोलते हैं निर्गुणा भक्ति, और निर्गुणा भक्ति में भगवान का कोई भी एट्रीब्यूट, गुण दोष नहीं होता है, हैविंग नो शेप नो साइज ऑफ इट्स ओन. तो भगवान का कोई शेप और साइज, आकार प्रकार नहीं होगा, वो निर्गुण है और वो निराकार है. सो जब भगवान निर्गुण और निराकार माने जाएंगे, उनका आकार ही नहीं होगा, तो आप मूर्तियां, आइडल्स नहीं बना सकते हैं. और जब मूर्तियां नहीं बनाएंगे तो मंदिर की भी जरूरत नहीं रह जाएगी. तो टेम्पल्स वर एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड इन दिस कॉन्सेप्शन ऑफ, इन दिस ब्रांच ऑफ निर्गुणा भक्ति, बिकॉज देयर वॉज नो नीड टू स्कल्प्ट idols either of wood or stone or encasting metal idols. तो मूर्तियां नहीं बनेंगी निर्गुण भक्ति में. लेकिन जो सगुण भक्ति है ना, सगुणा भक्ति, अनदर एस्पेक्ट ऑफ भक्ति इज सगुणा भक्ति. तो सगुणा भक्ति में गॉड्स और गॉडेसेस का, भगवान लोगों का एट्रीब्यूट होता है, प्रॉपर शेप एंड साइज होता है, वो एंथ्रोपोमॉर्फिक ह्यूमन फॉर्म में दर्शाए जाते हैं. तो अगर गॉड्स एंड गॉडेसेस एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में है, ह्यूमन फॉर्म में, इमेजिनेशन में आ रहे हैं, तो हम उनकी मूर्तियां, हम उनका आइडल्स बनाएंगे. और वी नीड नाउ, once we have sculpted an idol of our favorite god, we need to establish, we need to install that particular image at a particular place, and that place must be a sacred place. तो जैसे ही सगुण भक्ति में, आप निर्गुण भक्ति में तो मूर्तियां नहीं बनेंगी, तो मंदिर की भी जरूरत नहीं रह जाएगी. लेकिन अगर भक्ति सगुण है तो सगुण भक्ति में आइडल्स होंगे, मतलब मूर्तियां बनेंगी, और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा, उनका इंस्टॉलेशन किया जाएगा. एंड टू इंस्टॉल इमेज ऑफ आवर फेवरेट और चोजन डाइटी, वी नीड अ सैक्रेड प्लेस, वेरी वेरी सैक्रेड, एक पवित्र जगह की जरूरत पड़ेगी. एंड दैट सैक्रेड प्लेस इज एक्चुअली व्हाट वी नोन एज सैंक्टम सैंक्टोरम, और गर्भगृह, गर्भगृह और सैंक्टम सैंक्टोरम के गर्भगृह का इस्तेमाल हमेशा मुख्य देवता, मंदिर जिनके लिए डेडिकेटेड, समर्पित किया गया है. सो लाइक इफ यू टेक एग्जांपल ऑफ भगवान शिवा, एंड इफ अ टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, भगवान शिवा, तो गर्भगृह में या तो शिवजी मूर्ति रूप में स्थापित होंगे या शिवजी लिंग रूप में स्थापित किए जाएंगे. ठीक है, तो गर्भगृह is a very very sacred place and which is used to install image of our favorite deity. तो गर्भगृह बना, अब गर्भगृह बना दिया, अब गर्भगृह में सैंक्टम सैंक्टोरम, गर्भगृह में भगवान की मूर्ति लगा दी. तो अब ये बहुत पवित्र जगह है, और इतनी पवित्र जगह है तो हमने देवता के लिए और ज्यादा रिस्पेक्ट दिखाने के लिए, टू शो मोर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डाइटी, सो एग्जैक्टली अबाउट द सैंक्टम sanctorum और गर्भगृह, so we started constructing temple towers और शिखरा. तो हमने
टेम्पल टावर्स बनाना शुरू कर दिया। साउथ नॉर्थ इंडिया में इसको शिखर बोलेंगे, या साउथ इंडिया में शिखर को शिखर ना बोल करके विमान बोला जाता है। तो गर्भगृह के ठीक ऊपर मंदिर का मुख्य शिखर, मेन टेम्पल टावर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली अबव सैंक्टम सैंक्टोरम और गर्भगृह। एंड क्राउनिंग एलिमेंट यहां पे बना दिया जाएगा, एक सर्कुलर या ऑक्टागोनल शेप में क्राउनिंग एलिमेंट बना दिया जाएगा, और इस क्राउनिंग एलिमेंट को आम्लका कहा जाता है। और आम्लका के ऊपर बना देंगे एक कलश, और कलश में लगा दिया जाएगा एक झंडा। तो इनिशियली इन द बिगिनिंग around 15 or 1600 years back, when temple construction begins, initially only a small room or a small square shape, a small cell was constructed to install image of main deity of a temple. तो शुरुआत में जब मंदिर बने तो सिर्फ एक चौकोर सा कमरा बना दिया जाता था और मुख्य देवता की मूर्ति लगा दी जाती थी। बट लेटर ऑन ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट एजेस टू बिस्टॉ मोर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द, टू शो मोर रेस्पेक्ट टुवर्ड्स द डाइटी, देवता को और ज्यादा सम्मान दिखाने के लिए फिर टेम्पल टावर बनाना शुरू कर दिया गया। तो शिखर बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में, और शिखर एक्चुअली इन द रीजन्स ऑफ साउथ इंडिया, टेम्पल टावर और शिखरा ऑफ नॉर्थ इंडिया इज व्हाट वी नोन एज विमाना, विमान और विमाना, बिकॉज South Indian artists and the rulers, they got constructed lofty शिखरास और lofty विमानास, बड़े ऊंचे ऊंचे शिखर बनाए। तो ऊंचे ऊंचे शिखर बनने की वजह से साउथ इंडिया में द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में वहां पर उसको शिखर ना बोल करके विमाना बोला जाने लगा। विमान, which is phonetically pronounced as विमाना, otherwise there is no such term called विमाना। विमान होता है, विमाना कुछ नहीं होता है। वो अंग्रेजी में, इंग्लिश में, फोनेटिक्स में उसको विमाना कर दिया गया है। जैसे द्रविड़, नागर phonetically pronounced as Nagara, Dravid which is phonetically pronounced as Dravidaya, and that's why I don't like phonetics. Okay, तो sanctum sanctorum, शिखर, मेन टेम्पल टावर, और फिर बाद में समझ में आया कि ये तो भगवान के लिए हमने बना दिया, अब ये तो भगवान के लिए, तो अब हम कहां जाएं? तो हम भगवान की भक्ति करेंगे, तो अब हमें एक कमरा चाहिए। गर्भगृह के ठीक सामने हमने एक कमरा बना दिया और उसको बोलते मंडप। तो मंडप्स वर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली बिफोर द सैंक्टम सैंक्टोरम और गर्भगृह, विच इज यूज्ड मेनली फॉर डिवोटीज। भक्त लोग जब भगवान से मिलने जाएंगे, उसके लिए प्रार्थना, उनके सामने प्रार्थना करेंगे, उनके लिए गीत गाएंगे, उनको भोग लगाएंगे, तो हमें एक कमरा तो चाहिए ना कम से कम। तो ये तो भगवान का है गर्भगृह, भगवान प्रतिस्थापित है यहां पे, और यहां पे ये जो हमने बनाया एंड इसको लग देते हैं मंडपा और अ हॉल, असेंबली, मंडपा और असेंबली हॉल। तो ये एक असेंबली हॉल बन गया। कभी कभी या कई मंदिरों में एक से ज्यादा असेंबली हॉल बना, तो इसको कर दिया गया एक और असेंबली हॉल, तो इसको हमने नाम रख दिया अर्धा मंडपा। तो मंडपा एंड सेकंड वन अर्धा मंडपा, फिर ये बना दिया। और कुछ मंदिरों में जैसे खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो खजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में 2 के बजाय 3-3 बने हैं। तो जब 3 होंगे, जैसे 2 हैं तो मंडपा एंड अर्धा मंडपा, और अगर 3 हो गए तो फर्स्ट वन वुड बी रिफर्ड टू एज महामंडपा, सेकंड वन मंडपा, एंड लास्ट वन इज व्हाट वी नोन एज अर्धा मंडपा। तो महामंडपा, मंडपा एंड अर्धा मंडपा। इफ वी हैव 2 असेंबली हॉल सो देन वी वुड से मंडपा एंड अर्धा मंडपा, और अगर एक ही है तो मंडप बोल देते हैं, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, एंड मंडप, गर्भगृह प्रिसीडेड बाय मंडपा एंड अर्धा मंडपा। ठीक है, और शिखर या टेम्पल टावर, आमलक विच कुड बी सर्कुलर और ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका के जैसा। ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका भी हो सकता है और सर्कुलर आमलका भी हो सकता है। जैसे नॉर्थ इंडिया के टेम्पल में आप देखिए आमलका ये सर्कुलर है, और साउथ इंडिया में आप देखेंगे द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में आमलका साइड से देखेंगे तो ऑक्टागोनल छोटे से स्तूपा, लास्ट टाइम हमने स्तूपा पढ़ा था, छोटे से स्तूपा, ऑक्टागोनल छोटे से स्तूपा के जैसे लगेगा। तो ये, और शिखर या विमान कह लीजिए,
तो साउथ इंडिया में जो शिखर है, द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जो शिखर है वो एक्चुअली विमान बोला गया, और जैसे ये नागरा नॉर्थ इंडिया में है ना, तो ये कहा गया शिखर। अब ये बहुत पवित्र जगह है, तो बहुत पवित्र जगह हो ये टेम्पल, तो हमने ये सोचा, लोगों के मन में ये ख्याल आया कि इतना पवित्र जगह है, जैसे स्तूपा में ख्याल आया था कि स्तूपा चूंकि बुद्धा के रिलिक्स को कंटेन करता है या उनके ग्रेट डिसाइपल्स को के रिलिक्स को कंटेन करता है, तो स्तूपा को चारों तरफ से वेदिका या बाउंड्री वॉल से घेर दिया जाता था टू गेट दैट आंडा और अ वेरी वेरी सैक्रेड प्लेस separated from rest of the world or materialistic world. So similarly here also people started thinking of separating Garbhagriha with that of rest of the world or materialistic world. तो नेचुरल डिजायर आया दिमाग में कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि फिर इसको घेर दिया जाए, और ऐसे घेर देते हैं, और जब घेर देंगे तो ये बाउंड्री वॉल हो जाएगा, बाउंड्री वॉल, और जब बाउंड्री वॉल एक बार लग गया तो फिर एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स लगेगा, एंड दिस एंट्री गेटवे इज कॉल्ड गोपुरम। गोपुरम, तो बाउंड्री वॉल, और बाउंड्री वॉल में एक दरवाजा लगा दिया, गोपुरम, और बाद में कुछ जगहों पर मंदिरों में मल्टीपल गोपुरम लगाए गए, जैसे पांड्या रूलर्स या नायका रूलर्स आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ विजयनगरा एम्पायर, सो दे स्टार्टेड एडिशन ऑफ मल्टीपल गोपुरम, समटाइम्स 7 or 9 or 11 or 13 entry gateways or gopurams were also added to the boundary wall, but initially only one gateway or gopuram was added. तो एक इस तरह से दिमाग में आता है कंसेप्शन कि कैसे मंदिर बनना शुरू हुए थे। तो एक चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग देखिए बताता हूं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पहली बार मंदिर कब बने होंगे, तो आप इसका जवाब ये भी दे सकते हैं कि हजारों साल पहले बने होंगे, लेकिन ये हिस्टोरिकल आंसर नहीं है। मतलब हिस्ट्री, प्रोफेशनल हिस्टोरियन के तौर पे ये आंसर हम नहीं दे सकते हैं कि हम कुछ भी बोल जाएं। तो हिस्ट्री में हम ये ढूंढें कि मंदिर एग्जैक्टली कब बनना शुरू हुए थे, तो हमें आइडिया लगता है कि गुप्ता पीरियड और अराउंड 1600 years बैक, व्हेन प्रॉपर स्ट्रक्चरल टेम्पल कंस्ट्रक्शन बिगिंस। तो ये बात तकरीबन हिस्टोरिकली स्पीकिंग, नॉट इमोशनली, कि गुप्ता पीरियड में टेम्पल कंस्ट्रक्शन, जो स्ट्रक्चरल टेम्पल्स होते हैं, संरचनात्मक मंदिर होते, वो बनना शुरू हुए विधिवत तरीके से। वैसे सबसे पुराना मंदिर, एंड इफ यू गो थ्रू एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर वाली एनसीईआरटी जो क्लास 11 पे है, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, तो उसमें आपको एक लाइन मिलेगी, फर्स्ट टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन सेंट्रल इंडिया एट सांची, and that was a small square room, and it was constructed of baked bricks. ईंटों का, पकी हुई ईंटों का बना एक मंदिर बना सांची, मध्य प्रदेश के सांची में, और वो मंदिर तकरीबन 2200 साल पुराना है, 2200 years back, when first structural temple was constructed in our country, in North India, or in particular at central India. तो सबसे पुराना मंदिर 2200 साल पुराना है। उसके पहले क्या मंदिर नहीं बनते थे? बनते थे, लेकिन वो ट्री टेम्पल्स होते थे, ट्री टेम्पल्स। तो वृक्ष मंदिर, जैसे एक पेड़ है, पीपल या बरगद का पेड़ है, तो पीपल और बरगद के पेड़ के स्टेम के पास, जड़ के पास एक मूर्ति रख दी और पूजा पाठ शुरू कर दिया। तो इनिशियली इन द बिगिनिंग three temples were constructed, and the first structural temple was constructed around 2200 years back, but proper temple construction begins during the Gupta period. ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मंदिर 2200 साल पहले के भी पहले बनते थे। जैसे कौटिल्य के टाइम पे भी 2300 साल पहले भी मंदिर बनते थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे भी मंदिर बनते थे, लेकिन वो मंदिर ट्री टेम्पल्स होते थे, वृक्ष मंदिर होते थे। फिर 2200 साल पहले सांची में एक स्ट्रक्चरल मंदिर, एक संरचनात्मक मंदिर बना ईंटों का, जो एक स्क्वायर रूम था, वो अब एकदम कोलैप्स कर चुका है, और जो वास्तव में जिसको हम आज के जमाने में मंदिर कह सकते हैं, तो वो 1600 साल पहले बनना शुरू हुए थे, मेनली ड्यूरिंग द
गुप्ता पीरियड दैट टेम्पल कंस्ट्रक्शन बिगिंस। और नॉर्थ और साउथ इंडिया में अगर मैं आपसे पूछूं कि नॉर्थ और साउथ इंडिया में कहां मंदिर पहले बने, तो एग्जैक्टली नॉर्थ इंडिया में मंदिर पहले बने और साउथ इंडिया में मंदिर बाद में बनने शुरू हुए। तो साउथ इंडिया में मंदिर 7th सेंचुरी में बनने शुरू हुए और नॉर्थ इंडिया में बन चुका था 2nd सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट या 2nd सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा। या ईयर्स में लें तो नॉर्थ इंडिया का पहला मंदिर 2200 साल, पहला स्ट्रक्चरल मंदिर 2200 साल पुराना है और साउथ इंडिया में तकरीबन 1400 साल पुराना है। तो 700-800 साल का डिफरेंस है मंदिर बनने में नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में। और three different styles of temple construction had developed in our country. So in North India, the style of temple construction that took place is what we refer to as Nagar, which is phonetically pronounced as Nagara style of temple architecture. And South India, in the regions of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, and parts of Andhra Pradesh and Telangana, that Dravida style of temple construction begins. So Nagar, North India, द्रविड़ा साउथ इंडिया, और दोनों का फ्यूजन और हाइब्रिडाइजेशन करके कर्नाटका में एक नया स्टाइल डेवलप कर गया, उसे बोला गया वेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। सो actually mainly two distinct styles of temple construction had begun in our country. And in North India, the style of temple construction, which is referred to as Nagara, and in South India, which came to be known as Dravida. While in Karnataka region, they developed a distinct, not completely distinct style of temple architecture called Vesara, which was actually fusion of Nagara and Dravida. तो कर्नाटका रीजन में ये वेसरा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर डेवलप करता है, which was actually and mainly patronized by Rashtrakuta rulers and Chalukya rulers. So that's why, and this style of architecture, temple style is also referred to as Rashtrakuta चालुक्या स्टाइल या कर्नाटका स्टाइल या वेसरा स्टाइल। तो इसको कई नाम से बोलते हैं। चालुक्य, राष्ट्रकूटा या कर्नाटका स्टाइल, और वेसरा तो बोल ही रहे। और ये फ्यूजन है, एक्चुअली फ्यूजन है या हाइब्रिडाइजेशन है। तो इसमें बेसिक प्लान द्रविड़ा है, द्रविड़ा बेसिक प्लान है, और पैटर्न ऑफ डेकोरेशन जो मंदिर को सजाने का तरीका लिया गया है वो नागरा स्टाइल लिया गया। सो द्रविड़ा प्लस नागरा, तो दो मेन स्टाइल है और तीसरा फ्यूजन या हाइब्रिडाइजेशन होता है। चलिए इसके डिटेल्स पर डिस्कशन करते हैं। वैसे एक चीज और यहां पे बता दूं आपको कि दो मेन डिफरेंस है, देयर आर two main differences between Nagara and Dravida style. First main difference is all about the temple tower, which is called Shikhara in North India under Nagara style and Vimana in South India under Dravida style. So Nagar, a typical Nagar temple of North India is square at base. तो ये बेस पे स्क्वायर होगा, ठीक है, वर्गाकार बेस पे स्क्वायर होगा, एंड इट राइजेस जेंटली अपवर्ड्स, इट राइजेस जेंटली अपवर्ड्स एंड सडनली इट टेक्स कर्व, suddenly it takes curve and meeting atop. So this shape is called curvy linear shape, curvy linear, curved or curvy linear shaped temple, tower or shikhara. While under the Dravida style of temple architecture, there are number of blocks. This block, we have another one, and then we have third one and fourth one and so on. So this temple, it resembles more like a pyramid. So that's why it's called pyramidal shaped. तो pyramidal shaped शिखर, या शिखर को क्या बोल रहे हैं, विमाना, और ये हो गया कर्वी लीनियर शेप्ड शिखरा। और ये कुछ इस तरह का इंप्रेशन दे रहा है, इस तरह का इंप्रेशन दे रहा है, और ये
कुछ इस तरह का इंप्रेशन देगा, शेप में दे। ठीक है, तो ये कर्वीलिनियर है और ये कर्वीलिनियर ना होके पिरामिडिकल है। ब्लॉक्स है ना, ये ब्लॉक्स हैं। तो ये पहला बड़ा डिफरेंस है शिखर का या टेंपल टावर का। ये कर्वीलिनियर है और ये पिरामिडिकल है। स्टेप्ड पिरामिड इज, इट रिजेंबल्स मोर लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड और पिरामिडिकल इन शेप। और इधर जो ये है ये कर्वीलिनियर है। एंड वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस which is related to this shikhar or temple tower. So temple tower is circular in case of Nagara style, while here in case of Dravida style temple tower, टेम्पल टावर कह रहा हूं, सॉरी, ये आमलक जिसको बोलते हैं, टेम्पल टावर के ऊपर का हिस्सा। ठीक है, ये आमलक जो है ना, ये आमलका, ये सर्कुलर है। और इधर में आमलका जो है ना वो ऑक्टा गोनल स्मॉल स्तूपिका, ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका के जैसे है। और यहां पे वेसरा में सिलिंड्रिकल शिखर है, सिलिंड्रिकल शिखरा। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। पहले इन दोनों को देखिएगा, मेन डिफरेंस है। ये तो हाइब्रिडाइजेशन है या फ्यूजन है दोनों का। तो दो बड़े डिफरेंस है, कर्वीलिनियर शिखर और पिरामिडिकल शिखर। सर्कुलर आमलका, octagonal small stupika like amlaka. Now let's talk about details, fine details of these different styles of temple architecture. So basic plan of a temple, basic plan of a Hindu temple, I would say Hindu temple because we have number of Buddhist and Jaina temples as well. तो हम देखते हैं कि जो बेसिक प्लान है वो बेसिक प्लान में कई कंपोनेंट्स हैं। और सबसे पहले जो सबसे पवित्र जगह है जिसको हम कहते हैं सैंक्टम या सैंक्टम सैंक्टोरम, विच इज यूज्ड टू इंस्टॉल इमेज ऑफ द डाइटी टू whom this particular temple or a temple is dedicated. तो ये जो है ना, इस बेस जो है स्क्वायर बेस है और वो सैंक्टम सैंक्टोरम या गर्भगृह कहलाता है। So if a temple is dedicated to Lord Vishnu, say for example, if a temple is dedicated to Lord Vishnu, here we would find image of Lord Vishnu. तो लॉर्ड विष्णु, या अगर भगवान शिव को समर्पित मंदिर है तो शिव जी या तो मूर्ति रूप, लेकिन मेनली शिव जी लिंगा फॉर्म में वर्शिप किए गए हैं। तो या और जो दूसरा कंपोनेंट है, फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज सैंक्टम सैंक्टोरम, एंड अनदर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द टेंपल, सेकंड कंपोनेंट इज द टेंपल टावर। एंड इन केस ऑफ नॉर्थ इंडिया, टेंपल टावर इज मेनली सर्क्यूलर, एक्चुअली कर्वीलिनियर, आमलक इज सर्क्यूलर। ठीक है, तो ये टेंपल टावर, शिखर नॉर्थ इंडिया में और विमाना साउथ इंडिया में। और this component, these two are the crowning element of temple tower, amlaka and amlaka, which is surmounted by कलश, और कलश में एक लगा भगवा झंडा लहराता हुआ। और गर्भगृह के ठीक सामने असेंबली हॉल होता है, मंडपा। ठीक है, तो मंडपा या असेंबली हॉल ये भक्तों के लिए होता है। ठीक है, और अगर टेंपल एनक्लोज्ड है, एनक्लोज विद इन अ बाउंड्री वॉल, अगर बाउंड्री वॉल में एनक्लोज्ड है टेंपल, तो क्या मिलेगा? गोपुरम, मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड गोपुरम। ठीक है, अब देखिए कितने कितने बेसिक कंपोनेंट्स हैं। सो बेसिक प्लान ऑफ अ हिंदू टेंपल कंसिस्ट ऑफ 5 or 6 basic elements. First one is a cave-like structure called sanctum sanctorum or garbhagriha, which is used to install image of main deity of the temple to whom the temple is dedicated. A tower or temple tower या शिखरा और विमाना is raised exactly above the sanctum sanctorum. गर्भगृह के ठीक ऊपर मेन टेंपल टावर होता है, above the sanctum sanctorum called शिखरा, and शिखरा which is crowned with आमलका and कलश। और नागर में आमलका सर्कुलर होगा और द्रविड़ा में आमलका which resembles more like a small octagonal small stupika,
and there are number of supporting structures constructed before the sanctum sanctorum. Supporting structure matlab assembly hall, so which could be one or two or sometimes more than two, like in case of Khajuraho group of temples we get 3 assembly halls called Mahamandapa, Mandapa and Ardha Mandapa. So supporting structures are constructed before the sanctum sanctorum such as Mahamandapa, Mandapa and Ardha Mandapa. और अगर टेम्पल को घेरा गया है बाउंड्री वॉल से तो दरवाजा लगेगा मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स विच इज कॉल्ड गोपुरम. तो मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड गोपुरम ये मिल जाएगा. और एक और चीज आपको मिलेगी, जैसे अगर कभी आप भगवान शिव के मंदिर, पुराने मंदिर में गए हो, जो कि गए ही होते हैं हम लोग, तो वहां पर शिव जी के मंदिर के बाहर आपको नंदी जी मिलेंगे. पहले नंदी जी आपको मिलेंगे. तो नंदी जी मिलते ही आप समझ जाएंगे कि ये मंदिर तो भगवान शिव को समर्पित किया गया मंदिर है. तो नंदी जी इज कंसीडर्ड एज द व्हीकल ऑफ लॉर्ड शिवा. वो भगवान शिव के वाहन है. और अगर विष्णु जी का मंदिर होगा तो ग्रेट ईगल गरुड़ मिलेंगे, क्योंकि विष्णु जी की सवारी गरुड़ है. तो एन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड गोपुरम. और वाहन पांचवा एलिमेंट होगा अवाहना और व्हीकल टू द मेन डाइटी ऑफ टेंपल सच एस नंदी जी इन केस ऑफ अश्वाइट टेंपल, एंड ईगल और गरुड़ा in case of a Vaishnavite temple. And also temples are profusely or very well decorated. तो मंदिर बड़ी खूबसूरती से तराशे गए और सजाए गए हैं. वो स्कल्पचर, तो मंदिरों को बनाना आर्किटेक्चरल एलिमेंट है, मॉन्यूमेंटल, और मंदिरों को सजाना स्कल्पचर है. तो आर्किटेक्चर और स्कल्पचर एक साथ स्टडी किया जाता है तो ये बढ़िया समझ में आता है. ठीक है ना. तो हम वही कर रहे हैं, आर्किटेक्चर को स्कल्पचर के साथ अटैच करके फिर स्टडी कर रहे हैं. और देखिए, सो दिस टेंपल actually belongs to Khajuraho group of temple. So that's why here we have 1, 2 and 3 assembly halls called Ardha Mandapa, मंडपा, अर्धा मंडपा, मंडपा, महामंडपा. और एक गैप मिलेगा वेस्टिब्यूल और अंतराल, और एक अंतराल के बाद मिले गर्भागृह. भगवान से मिलने हम जाएंगे जब. तो शिखर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली अबाउ द गर्भागृह और सैंक्टम सैंक्टोरम शिखर. और यहां पे इस इमेज में आप बड़े ध्यान से देखेंगे ना तो आपको बहुत फाइन डिटेल समझ में आएगा कि शिखर दरअसल खजुराहो ग्रुप ऑफ टेंपल्स में शिखर एक तो है ही नहीं, एक तो है, ये है एक शिखर. यानी कि मेन टेंपल टावर के साथ अटैचमेंट ऑफ नंबर ऑफ स्मॉलर शिखरास कॉल्ड उरुश्रृंगा. क्या ना. तो ये देखें, ये उरु, ये जो दिख रहा है आपको, या ये जो दिख रहा है, ये इनको कहते हैं, यहां पे लिखा भी हुआ है SHRINGA, उरुश्रृंगा, निकले हुए सिंह के जैसे. ठीक है. और इसके ठीक नीचे गर्भागृह, और गर्भागृह के बाद थोड़ा सा अंतराल होगा, गैप होगा, और अंतराल के बाद महामंडप, मंडप और अर्धा मंडपा, यानी कि पोर्च. तो अर्धा मंडपा पोर्च है, मंडपा असेंबली हॉल है, और महामंडपा लार्जर असेंबली हॉल. तो पोर्च, असेंबली हॉल, लार्जर असेंबली हॉल, अंतराल, एंड देन गर्भगृह एंड टेंपल टावर. और खजुराहो ग्रुप है तो उरुश्रृंगा. ये खास बातें हैं. ठीक है. तो देखिए सजाया कैसे गया है. और मैंने आपको बोला कि मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड गोपुरम. मुख्य प्रवेश द्वार वो गोपुरम है. तो टेंपल्स को बहुत इलेबोरेट ऑर्नामेंटेशन के साथ सजाया गया है, पत्थर पे ही तराशा गया है. देख रहे हैं कितनी खूबसूरत, कितनी शानदार सजावट है. और ये है टिपिकल गोपुरम. वैसे ये साउथ इंडिया का गोपुरम है, टिपिकल गोपुरम यही है. तो ये प्रवेश मंदिर प्रांगण का मुख्य प्रवेश द्वार, मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स. चलिए सजावट को देखते हैं. डेकोरेटिंग एलिमेंट, क्या शानदार, क्या बेहतरीन सजावट है. तो द टेंपल इज कवर्ड विथ इलाबोरेट ऑर्नामेंटेशन स्कल्पचर. मूर्तियां बना करके बड़े ही एग्जॉस्टिव तरीके से, शानदार तरीके से मंदिरों को सजाया गया है. एंड दैट
that form a fundamental part of its conception. तो मंदिर है तो सजावट तो होगा ही होगा, क्योंकि वो फंडामेंटल पार्ट है मंदिर के सजावट को, ये फंडामेंटल पार्ट में आता है. So the temple is covered with elaborate ornamentation, sculpture that form a fundamental part of its conception. Second important point is the images are carefully planned. मतलब मंदिर को यूं ही मूर्तियां बनाकर नहीं सजाया दिया गया है, उनको बड़े ही केयरफुली प्लान करके सजाया गया है. जैसे अगर आप मंदिर प्रांगण में जाएंगे तो अंदर जाएंगे तो गर्भगृह में रिवर गॉडेसेस हैं, यमुना जी और गंगा जी की, यमुना देवी और गंगा देवी की मूर्तियां वो गर्भगृह के पैनल पे, चौखट पे मिलेंगे. और अगर खजुराहो मंदिर में आप जाएंगे तो बिकॉज खजुराहो टेम्पल्स आर ऑल्सो फेमस फॉर मिथुना इमेजेस और इरोटिक इमेजेस, तो आप ये नोटिस करेंगे कि जो मिथुन आकृतियां या इरोटिक इमेजेस बनी हैं वो मंदिर के आउटर वॉल पे बनी हैं, वो अंदर नहीं बनेंगी. तो जो खजुराहो जिसके लिए जाना जाता है वो मूर्तियां तो एक्चुअली बाहर वाले दीवार पे हैं, अंदर थोड़ी ना है. तो बिना बात के सजावट नहीं की गई, ये सजावट बहुत केयरफुली प्लान्ड है. तो द इमेजेस आर केयरफुली प्लान्ड लाइक इमेजेस ऑफ डिवाइन क्रिएचर्स, यक्षा, यक्षी, रिवर गॉडेसेस, गंगा जी, यमुना जी आर प्लेस्ड ऑन द पैनल्स ऑफ एंट्रेंस ऑफ गर्भगृह. गर्भगृह, तो ये इमेजेस गर्भगृह में, और बाकी जैसे देखिए मिथुन आकृतियां वो दरवाजे पे या आउटर वॉल्स पे वो होंगी. तो इमेजेस ऑफ 9 ऑस्पिशियस प्लैनेट्स, नवग्रह, तो आज से 800, 1000 साल, 1200 साल पहले मंदिरों को सजाने के लिए 9 प्लैनेट्स का डिआईटी फॉर्म में, ह्यूमन फॉर्म में, एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉर्म में इमेजेस बनाया गया है. एक सवाल आप लोगों से है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एक सवाल पुट किया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धा एंड बोधिसत्वा. तो आप में से एक एस्पायरेंट ने बहुत अच्छा एकदम परफेक्ट आंसर दिया था, और कि बुद्धा जो एनलाइटेंड हो जाता है, जो ज्ञानवान होता है, उससे बुद्ध कहते हैं, और बोधिसत्वा वो है जो बुद्ध से एक स्टेज नीचे होता है, जो बुद्ध बनने के करीब है लेकिन अभी बुद्ध बना नहीं है. एंड दे आर हाईली कॉम्पैशनेट, दे आर हाईली कॉम्पैशनेट, वो बहुत दयावान, करुणामयी होते हैं. बहुत अच्छा आंसर था. तो अब आंसर एक आपको ढूंढने को बोल रहा हूं कि ये कैसे इंडियंस को पता था 1200 साल पहले कि 9 प्लैनेट्स होते हैं जबकि टेलीस्कोप वगैरह कुछ भी नहीं होता था. ढूंढ के कमेंट में बताइएगा. जो इस्तेमाल करना हो इस्तेमाल कर लीजिएगा, गूगल इस्तेमाल करना हो, चैट जीपीटी, एआई, कोई भी टूल, देखते हैं कि चैट जीपीटी, एआई टूल्स में कितना दम है, खोज पाता है कि नहीं. कि 1200 साल पहले, 1100 साल पहले इंडियंस को पता कैसे था भैया कि 9 प्लैनेट्स होते हैं. और वैसे प्लूटो वो जो ऑर्बिट इंटरसेक्ट करता है तो कई बार उसको कंसीडर नहीं किया जाता है, 8 ही प्लैनेट्स माने जाते हैं, लेकिन ओवरऑल एग्जिस्ट तो करता है ना नवा. चाहे वो भले आप प्लैनेट मारिए चाहे उसको मत मानिए, एग्जिस्ट तो कर ही रहा है. तो नवग्रह तो हैं, आपके डिफिनीशन पे भले ही ना हो लेकिन है तो सही. तो पता करके बताइएगा ये कैसे मालूम था. तो नवग्रह की मूर्तियां, मिथुन आकृतियां या इरोटिक इमेजेस, और कल्पलता, बेल बूटे, कल्पलता आर इन ऑल्सो इनग्राफ्ट फॉर डेकोरेशन. शिखर या टेंपल टावर को सजाने के लिए आमलक और आमलक के ऊपर कलश बनाया गया. तो आमलका एंड कलश आर ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड टू डेकोरेट शिखरा और विमाना ऑफ साउथ इंडिया. इसके अलावा देखिए आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये इमेज सेमी डिवाइन क्रिएचर का है, जो ना तो भगवान है जो ना तो मनुष्य है, बट समवेयर इन बिटवीन भगवान एंड ह्यूमंस. तो यक्ष, और यक्ष बड़े इंटेलिजेंट, बड़े ज्ञानवान होते थे. और युधिष्ठिर, आपको याद होगा महाभारत के वो एपिसोड में आपने कभी देखा हो शायद कि युधिष्ठिर से यक्ष कुछ सवाल पूछते हैं, तो उसी को यक्ष प्रश्न कहा जाता है. यक्ष प्रश्न वो देखिएगा, महाभारत में पढ़िएगा कि एपिसोड युधिष्ठिर, उनके भाइयों और युधिष्ठिर का यक्ष वाला पूरा क्या एपिसोड है. मैं वो पूरी बात यहां पे आपको नहीं बता सकता हूं, हमारा फोकस इस वक्त दूसरे टॉपिक पे. तो यक्षा, और ये मां गंगा की मूर्ति है. तो गंगा मैया, और अभी महाकुंभ तो चल ही रहा है, ठीक है ना.
और हो सकता है आप में से कई लोग बताइएगा कौन कौन महाकुंभ गया है, और ये जरूर शेयर करिएगा कि आपका वहां क्या डिवाइन एक्सपीरियंस रहा है, कैसा लगा। अगर आप गए होंगे, आप में से जरूर कुछ ना कुछ लोग गए होंगे, तो एक्सपीरियंस बताइएगा। मैं तो अभी नहीं जा पाया हूं, क्लासेस में ही अब बिजी हूं, तो देखता हूं, कोशिश करता हूं किसी दिन टाइम मिल गया तो वो डिवाइन फीलिंग जो आती है ना, वो हजारों लाखों लोगों के साथ एक बार में जब आप गंगा मैया में जाते हैं, वहां पे स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, तो क्या फीलिंग आता है वो जरूरी है समझना। लेकिन अभी थोड़ा बीच बीच में कुछ कुछ दिक्कतें आ जा रही हैं, ठीक है, लेकिन वो दुर्भाग्यवश हैं कि कुछ चीजें हो गई, लेकिन फिर भी लाखों लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। तो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिएगा, जानना चाहता हूं आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस वहां पे रहा, क्योंकि मैं अभी जा नहीं पाया हूं। तो ये देखिए यहां पर माँ गंगा, कैसे पता चल रहा है ये इमेज माँ गंगा का है? इसमें एक हिंट छुपा हुआ है, मैं हिंट दे देता हूं और आप बताइएगा, देखता हूं कौन पकड़ पा रहा है और किस चीज का ये इमेज है। एक रेप्टाइल है, चलिए हिंट दे दिया, ये इसी से पता चलता है। और ये देखिए देवगढ़ में एक दशावतार मंदिर है, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, और उसको डेकोरेट करने के लिए यहां पे एक थीम लिया गया है हिंदू माइथोलॉजिकल बुक से, कॉल पुराण। तो पुराण से एक थीम लिया गया, जैसे विष्णु पुराण, गरुण पुराण, भागवत पुराण। तो यहाँ पे भगवान श्री विष्णु जी को दिखाया गया है कि भगवान विष्णु है और वो लेटे हुए हैं रिक्लाइनिंग पोस्चर में क्षीर सागर में, एंड लॉर्ड विष्णु लिव्स इन अ प्राइमल ओशन क्षीर सागर ऑन अ बेड ऑफ 1000-headed snake Sheshnaga. And when Lord Vishnu is in sleep, a lotus grows from his nabhi, from his navel, and that's why we have another name for Lord Vishnu, Padmanabh. पद्मनाभ, जिसके नाभि से, जिनकी नाभि से कमल निकलता है। तो ये नाभि से कमल निकल रहा है और कमल पे साक्षात विराजमान है ब्रह्मा जी, जो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। तो यूनिवर्स जब एक बार वंस, सो a lotus grows from his navel. A lotus grows from the navel of Lord Vishnu, and in the lotus is Demiurge. Demiurge is the god who creates the universe. Demiurge, Brahma, or Brahma ji creates the universe. Once the universe is created, Lord Vishnu awakes from his sleep. वो अपने नींद से जगते हैं, and four-armed भगवान विष्णु, चतुर्भुज भगवान विष्णु इस पूरे ब्रह्मांड पे अपना रूल करते हैं, और वो जगत के नाथ हैं, जगन्नाथा भगवान विष्णु। And we have a very very famous temple dedicated to Jagannatha भगवान विष्णु, located in Odisha at, बताइए, बताइएगा, देखता हूं, ये जानते ही हैं, हम लोग जानते हैं। तो ये माइथोलॉजिकल स्टोरी है जिसको उकेरा गया है मंदिर की दीवार पे सजाने के लिए। कौन से मंदिर की दीवार पे? ये पौराणिक थीम है, पौराणिक थीम, पौराणिक विषय वस्तु। और ये दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़, ठीक है ना, दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़ का है सजावट। और ये तो थोड़ा जूम इन किया हुआ है, ये सर्कुलर आमलका ऑफ नागरा टेम्पल है। बाकी ये देखिए, ये स्मॉल स्तूपिका के जैसा आमलका साउथ इंडिया या द्रविड़ा द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर का है। तो ये ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका लाइक आमलका, and here we have सर्कुलर आमलका। ऊपर में ये हो गया कलश, और कलश के इसमें लगा दिया भगवा फ्लैग। और नागर स्टाइल पे फोकस करते हैं, नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। दिस वन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल, मुक्तेश्वरा टेम्पल इन ओडिशा, एंड हियर वी हैव वन ऑफ द मोस्ट फेमस टेम्पल डेस्टिनेशन ऑफ आवर कंट्री, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथा, लॉर्ड कृष्णा, ठीक है, लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड विष्णु ही लॉर्ड जगन्नाथ है, और लॉर्ड जगन्नाथ ही भगवान श्री कृष्ण है। तो उनका जगन्नाथ मंदिर, जो सवाल मैंने अभी आपसे पूछा था, पुरी का जगन्नाथ मंदिर। और नॉर्थ इंडिया का जो टिपिकल
टेम्पल स्टाइल है वो नागर बोला जाता है। और ये नागर टेम्पल देखिए, इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म। तो पत्थर के चबूतरे पर बनाया जाता है मंदिरों को। और अगर पत्थर के चबूतरे पे थोड़ा ऊंचाई पे बनाएंगे तो ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनानी पड़ेगी ना। तो इट इज कॉमन फॉर एन एंटायर टेम्पल टू बी बिल्ट ऑन अ स्टोन प्लेटफॉर्म विथ सीढ़ियां, स्टेयर्स और स्टेप्स लीडिंग up to it. And unlike in South India, it does not usually have elaborate boundary walls or gateways. का मतलब यह है कि साउथ इंडिया के मंदिरों को एसेंशियली बाउंड्री वॉल से एनक्लोज किया गया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया के बहुत से ऐसे मंदिर हैं जिनको जरूरी नहीं है कि आवश्यक रूप से उन्हें बाउंड्री वॉल में एनक्लोज किया ही गया हो, यह कोई जरूरी बात नहीं है। लेकिन साउथ इंडिया में एसेंशियली एनक्लोज किया गया है, नॉर्थ में नहीं किया गया है। तो नॉर्थ इंडिया में हम एक और पैटर्न देखते हैं कि शुरुआत में जब मंदिर बने ना तो एक शिखर बना है, single temple tower was constructed exactly before the sanctum sanctorum, but later on during subsequent ages like during the time of Chandela dynasty, Chandela rulers of central India, तो चंदेला रूलर्स ने कई मंदिर बनवाए खजुराहो, कालिंजर, महोबा में। और जब उन्होंने मंदिर बनवाए तो उन्होंने एक टेंपल टावर नहीं ऐड किया, एक टेंपल टावर जो मेन टेंपल टावर है उसके साथ छोटे 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 कई टेंपल टावर्स, स्मॉलर टेंपल टावर्स फॉर अटैच विद द मेन टेंपल टावर कॉल्ड ओरो श्रृंगा। अभी मैंने आपको बताया था ओरो श्रृंगा। तो खजुराहो टेंपल्स की एक बड़ी खास विशेषता है, बड़ी खास कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उरु श्रृंगा, और स्मॉलर एंड मल्टीपल टेंपल टावर्स अटैच विद द मेन टेंपल टावर कंस्ट्रक्टेड एग्जैक्टली अबाउट द सैंक्टम सैंक्टोरम। और नागर स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो नागर स्टाइल के 3 सब डिवीजन है, 3 सब डिवीजन है। आप फाइन आर्ट्स वाली एनसीईआरटी में ये मिलेगा आपको कंटेंट, वहां से हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। और जो भी टेक्स्ट बुक है और एडवांस टेक्स्ट बुक्स हैं उससे कंटेंट हमने लिया हुआ है। उसमें 2 किताबें हैं, एनबीटी पब्लिकेशन से आता है, एनबीटी से टेम्पल्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। एंड फॉर यू पीपल देयर इज नो नीड टू गो थ्रू दोस 2 टेक्स्ट बुक्स, वो मोटी मोटी किताबें हैं और एक टॉपिक के लिए आप 2-2 किताबें पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारा काम है आपको पढ़ाने के लिए। तो नागर स्टाइल के 3 डिवीजन, सब डिवीजन है, वो लैटिना या रेखा प्रासाद टाइप, लातिना या रेखा प्रासाद टाइप, जैसे जो ओडिशा ग्रुप ऑफ टेंपल्स है ना, तो ओडिशा ग्रुप ऑफ टेंपल, ये मंदिर पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये लैटिना या रेखा प्रासाद टाइप है, रेखा प्रासाद। और इसी का ब्रॉडर और कम हाइट हो, ब्रॉडर एंड shorter version of Latina is called Famsna. So we have first subdivision called Latina, second is called Latina or Rekha Prasad type of temple. So Odisha group of temples like Jagannatha temple, Sun temple of Konark and Lingaraja temple are the best available specimens under this Latina or Rekha Prasad subdivision under Nagara style. और दूसरा जो डिवीजन है वो है फम्सना। जैसे खजुराहो के मंदिर चौड़े हैं लेकिन हाइट में थोड़े कम है, उड़ीसा के कंपैरिजन में कम है, तो दूसरा सब डिवीजन बनता है फम्सना। एंड दीस टेंपल्स आर ब्रॉडर एट बेस बट शॉर्टर वर्जन है। तो लैटिना या रेखा प्रासाद का ही चौड़ा और छोटा कम ऊंचाई वाला जो सब डिवीजन है वो फम्सना कहलाता है। और नागर में ही वल्लभी टाइप आता है, जो गुजरात में बने हैं मंदिर वल्लभी टाइप। तो वल्लभी टाइप में जो खास बात है वो ये टेंपल्स स्क्वायर एट बेस नहीं है, दिस टेंपल्स आर रेक्टेंगुलर एट बेस एंड वैगन वॉल्टेड शिखरा, वैगन वॉल्टेड शिखरा। तो ये वैगन वॉल्टेड चैम्बर्स हैं, मतलब वैगन आर जो मारुति सुजुकी की गाड़ी है ना, वैगन आर उसी पे शिखर ऐसे लगा दीजिए बक्से के जैसे, तो ये वल्लभी टाइप हो जाएगा वैगन, इसीलिए उसको वैगन से वैगन आर बोलते हैं, वैगन आर। और वैगन जी मर्सिडीज की गाड़ी है और वैगन आर मारुति सुजुकी की है। और वो जो वैगन जी है ना वो कई करोड़ की आएगी और वैगन आर ओटीपी वाली गाड़ी है, तो वो मत खरीदिएगा कभी लाइफ में, मतलब खरीद लीजिएगा, मैं कुछ कह नहीं रहा हूं आप लोगों से, ठीक है ना। तो लैटिना या रेखा प्रसाद, फम्सना,
उसी का ब्रॉडर एंड शॉर्टर वर्जन। और वल्लभी टाइप ये गुजरात के कुछ पार्ट्स में डेवलप करता है। और इसमें रीजनल वेरिएशंस भी हैं कि नागर स्टाइल में वेस्ट इंडिया, गुजरात और राजस्थान के कुछ टेंपल्स का स्टाइल अलग है, और ईस्टर्न इंडिया, उड़ीसा, बंगाल और असम के टेंपल्स वो ईस्टर्न इंडिया के टेंपल्स में आएंगे। और खजुराहो, कालिंजर, महोबा, कुछ मंदिर उत्तर प्रदेश के जो मध्य प्रदेश के बॉर्डर एरिया से सटे हुए हैं उसके मंदिर सेंट्रल इंडिया टेंपल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो 3 सब डिवीजन है, रेखा प्रसाद, फमसना एंड वल्लभी टाइप, और 3 रीजनल वेरिएशन है, वेस्ट इंडिया टेंपल्स, ईस्टर्न इंडिया टेंपल्स एंड सेंट्रल इंडिया टेंपल्स। अब देखते हैं कि ये नागरा स्टाइल में मोस्ट कॉमन शेप ऑफ द शिखर इज स्क्वायर एट बेस। ये बेस पे स्क्वायर है, और ऊपर जाने पे जो शिखर होता है वो शिखर कर्व ले रहा होता है। तो कर्वी लीनियर शिखरा। तो स्क्वायर एट बेस और कर्वी लीनियर टेम्पल टावर या कर्वी लीनियर शिखरा। So in Nagara style, the most common shape of shikhar is a square at the base and whose walls curve and or slope inward. तो मैंने आपको बोला था कि it rises gently upwards and suddenly it takes curve meeting a top. और यहां पर फिर ये कुछ ऐसा है, ये मोस्ट कॉमन शेप है नागर स्टाइल में। तो हालांकि हर मंदिर एग्जैक्टली ऐसा दिखे कोई जरूरी नहीं है नागर स्टाइल में। सो स्क्वायर एट द बेस एंड हुज वॉल्स कर्वी लीनियर और स्लोप इनवर्ड टू अ पॉइंट ऑन टॉप इज कॉल्ड लैटिना और रेखा प्रासाद टाइप ऑफ शिखर। और अगर हम सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया के मंदिरों की बात करें तो सेंट्रल इंडिया टेम्पल्स एंड सबसे पहले, और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 2200 साल पहले इंडिया का सबसे पहला मंदिर सेंट्रल इंडिया में ही तो बना, सांची में, which was a small cell square room constructed of baked bricks and the temple is no more a temple actually, वो कोलैप्स कर चुका है, इस ruined temple खंडहर हो चुका है। सो और 2200 साल पुराना भाई। तो ancient temples of UP, MP, Chhattisgarh and some parts of Rajasthan falls within this category of Central India temples. Some of the oldest surviving structural temples of Gupta period constructed during the Gupta period are in Madhya Pradesh and Chhattisgarh, and the best available specimen of early temples is दशावतार टेम्पल ऑफ देवगढ़। 10 अवतार भगवान विष्णु के, 10 अवतार पुराणों के हिसाब से जो प्रमाणिक अवतार है, वैसे कहीं कहीं 24 अवतार भी मिलते हैं, लेकिन प्रमाणिक अवतार 10 मिलते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुरामा, रामावतार, कृष्णावतार, बुद्धावतार, और 10वां अवतार कल्कि अभी होना शेष है, फ्यूचर लॉर्ड विष्णु येट टू बी इनकारनेटेड। So Dashavatar Temple of Devgarh is the best specimen of early temples, जिसमें कि शिखर भी आपको मिलेगा और गर्भगृह के ऊपर। और सबसे खास बात ये कि द टेम्पल वॉज मेड इन पंचायतना स्टाइल। ये PYQ में आपको मिलेगा, क्वेश्चन IAS में पूछा गया है प्रीलिम्स में, पंचायतना स्टाइल। तो पंचायतना स्टाइल यहां पे देख रहे हैं ना, जैसे ये कि पंचायतना स्टाइल क्या होता है कि चारों कॉर्नर पे सेल्स मिलेंगे और एक गर्भगृह, तो एक गर्भगृह और 4 कॉर्नर्स पे 4 और मूर्तियां, तो कितना हो गया 5। पंच आयतन, 5 डायमेंशंस, 5 sacred places including गर्भगृह, where a main shrine is built with 4 smaller subsidiary shrine, where main shrine is built with 4 smaller subsidiary shrines at the corners। तो 4 कॉर्नर पे 1 2 3 4 और फिर गर्भगृह, तो पंच आयतन हो जाएगा। और डेकोरेटिव एलिमेंट्स जो स्कल्पचरल आर्ट में आता है वो सब देखिए, ठीक है ना, दिख रहा है। और
तो शुरुआती दौर के जो गुप्ता पीरियड में मंदिर बने ना, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर, वी हैव अदर एग्जांपल्स ऑफ अर्ली टेंपल्स इंक्लूडिंग पार्वती टेंपल ऑफ नशना कुठार, भीतरगांव टेंपल ऑफ कानपुर, भीतरगांव टेंपल ऑफ कानपुर, पार्वती टेंपल ऑफ नशना कुठार, दशावतार टेंपल ऑफ देवगढ़, और एक बिहार में ना गया डिस्ट्रिक्ट है, गया डिस्ट्रिक्ट में भी एक बहुत फेमस मंदिर है और बड़ा खूबसूरत मंदिर है। मैं गया हूं वहां पे, बड़ा खूबसूरत मंदिर है। बताइएगा उसके बारे में, अगर गए हो या सर्च कर पाएंगे तो थोड़ा सा बताइएगा कि वो विष्णु जी का मंदिर है, इतना मैं आपको बता दे रहा हूं। अभी देखिए, खजुराहो टेम्पल्स जो है ना सेंट्रल इंडिया के, वो मिथुन आकृतियों, प्रेम प्रेम मिथुन आकृतियों की वजह से बहुत फेमस हैं, ठीक है ना। और मिथुन आकृतियां और खजुराहो में जो इरोटिक या मिथुन आकृतियां या इरोटिक इमेजेस है ना, वो क्या मैसेज दे रहे हैं? वो मैसेज ये दे रहे हैं कि मंदिर के बाहरी दीवार पे, यानी कि भौतिक दुनिया में, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में आप बच्चे पैदा करिए, वरना सोसाइटी कोलैप्स कर जाएगा। और मंदिर के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, तो मेटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में बैलेंस बनाना है, वरना अगर सब बच्चे ही पैदा करते रहेंगे तो स्पिरिचुअलिटी खत्म हो जाएगी। अगर सब स्पिरिचुअल होकर के साधु सन्यासी होने लगे तो बच्चे कौन पैदा करेगा? तो बैलेंस बनाना होगा मेटेरियलिस्टिक लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में। ये खजुराहो के मंदिर हमें संदेशा दे रहे हैं। या अगर आपके पास कोई और इंटरप्रिटेशन है तो वो इंटरप्रिटेशन भी आप शेयर करिए और हम सबको पता चलेगा। तो न्यूमरस टेम्पल्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशन, छोटे छोटे मंदिर, न्यूमरस टेम्पल्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशंस वर कंस्ट्रक्टेड सच एज खजुराहो टेम्पल्स। लक्ष्मण टेम्पल बड़ा शानदार मंदिर है। लक्ष्मण टेम्पल विच इज नॉट डेडिकेटेड टू लक्ष्मण जी एंड इट्स एक्चुअली डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, इज द ग्रैंडेस्ट टेम्पल ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो का सबसे शानदार मंदिर लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। बाकी उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहां पे दी हुई है। और एक और मंदिर जो बहुत फेमस है, देखिए, लक्ष्मण टेम्पल ऑफ सिरपुर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, और ये कंदरिया महादेव मंदिर। अब ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि शिव जी को समर्पित है, महादेव, गॉड ऑफ द गॉड्स, कंदरिया महादेव। तो इस मंदिर को शेप दिया गया है, देखिए, कि जैसे भगवान शिव कैलाश पर्वत पे रहते हैं ना, बहुत ऊंचा पर्वत है, तो वैसे यहां पे ये बढ़ता हुआ ये सबसे ऊपर, तो इसको पहाड़ी का शेप दिया गया है। छोटी पहाड़ी और ऊंची और ऊंची, सबसे ऊंची। खजुराहो टेम्पल्स, तो खजुराहो टेम्पल्स की बहुत सारी अपनी चारित्रिक विशेषताएं हैं। वी हैव नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स, लाइक टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन अ हाई और रेज्ड प्लेटफॉर्म। खजुराहो के मंदिर देखिए कितने ऊंचे चबूतरे पे बनाया गया है। कई फीट का चबूतरा लिया गया है बनाने के लिए, कई फीट का चबूतरा लिया गया है। और अगर इतना ऊंचे मंदिर बनाएंगे ऊंचाई पे, तो ऊपर जाने के लिए जाहिरन तौर पे आपको क्या, स्टेयर्स या सीढ़ियां बनानी पड़ेगी। तो टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड ऑन हाई प्लेटफॉर्म, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ टेम्पल्स आर प्लेस्ड टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेसेस। इट मींस देखिए यहां पे पोर्च या अर्धा मंडपा, मंडपा, महामंडपा, फिर गैप और फिर गर्भगृह। मतलब पूरा मंदिर क्या शानदार, एकदम कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट, और जगह ज्यादा नहीं छोड़ा गया है। तो ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ खजुराहो टेम्पल्स आर प्लेस्ड टुगेदर लिविंग लिटिल स्पेसेस और वेस्टिब्यूल्स, और एक मुख्य शिखर के साथ छोटे 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 कई शिखर अटैच हुए हैं, जिनको हम कह रहे हैं उरुश्रृंगा। और खजुराहो के मंदिर पंच आयतन शैली, पंचायतना स्टाइल में बने हुए, कि गर्भगृह और 4 कॉर्नर्स पे 4 और श्राइन्स, तो पंच आयतन हो गया, 5 डायमेंशंस। और ये मैंने अभी आपको बताया पूरा माइथोलॉजिकल स्टोरी इस सजावट के पीछे की। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, देखिए, कि सेंट्रल इंडिया में तांत्रिक एक्टिविटीज से जुड़े हुए मंदिर बनाए गए, और प्लेनेटरी मूवमेंट्स को स्टडी करने के लिए। जैसे ये मंदिर जो है ना, ये देखिए खुला मंदिर है, कोर्टयार्ड है, खुला हुआ है, ताकि प्लेनेटरी मूवमेंट्स का स्टडी, रात में प्लेनेटरी मूवमेंट्स का स्टडी किया जा सके। तो तांत्रिक एक्टिविटीज के साथ साथ क्या कहते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल
एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज भी किया जा सके। तो मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स, और ये कुछ देख ही रहे होंगे, कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा कि जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है वो इसी की नकल मार के बनाया गया था। जो ल्यूटियंस जोन में दिल्ली बना ना, ल्यूटियंस दिल्ली, वो इसी की नकल करके पार्लियामेंट का ओल्ड बिल्डिंग हमारा तैयार किया गया था। और इसमें 64, बीच में तो भगवान शिव हैं, तो चूंकि तांत्रिक एक्टिविटीज से भगवान शिव को जोड़ा जाता है, काल भैरव रूप जो है ना शिव जी का, काल भैरव रूप वो तांत्रिक कल्ट में जाता है। तो मुख्य में तो भगवान शिव अपने भैरव रूप में है, लेकिन ये जो 64 कक्ष है ना, 64 कमरे, ये योगिनियों का है। ये योगिनी तांत्रिक एक्टिविटीज में, तांत्रिक टेंपल्स में मिलेंगी। और ये माना जाता है कि तांत्रिक कल्ट में कि योगिनियां जो है ना वो फ्लाई करती हैं, उड़ती हैं, तो उनको इसीलिए ये खुला मंदिर बनाया गया है। और जो योगिनी है ना उनको इमेजिनेशन में बड़े अजीब तरीके से लाया गया है कि जैसे देखिए यहां पर एक इमेज मैंने डिस्प्ले किया हुआ है कि यहां पर एक देवी है, एक देवी की मूर्ति बनाई गई है, गॉडेस है, और गॉडेस का जो हेड बनाया गया है वो गोट है, बकरी का सिर बनाया गया है। तो गोट हेडेड योगिनी, और इस रूप को कहा जाता है एंथ्रोनी। मनुष्य रूप नहीं है ये, आधा मनुष्य और आधा मनुष्य के जैसे और आधा पशु के जैसे, बकरी के जैसे। तो ये ना एंथ्रोपोमॉर्फिक नहीं है, बाकी तो एंथ्रोपोमॉर्फिक होता है, ये थीरियो कहते हैं हम इन्हें। थीरियोमॉर्फिक इमेज है ये। तो एंथ्रोपोमॉर्फिक के बजाय तांत्रिक कल्ट में थीरियोमॉर्फिक लिया गया है। तो ये पूरा 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश में मिठोली में है, और बेस्ड ऑन तांत्रिक कल्ट ऑफ शाक्त संप्रदाय। तो हिंदू धर्म में 3 संप्रदाय प्रमुख रूप से हैं, शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त, जहां पे देवियों की पूजा को प्राथमिकता दी जाती है, प्रेफरेंस दिया जाता है। तो बेस्ड ऑन तांत्रिक कल्ट ऑफ शाक्ता संप्रदाय ऑफ हिंदुइज्म ओरिजिनेटेड अराउंड 5th और 6th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, लगभग 1400-1500 साल पहले ये शेप लेता है तांत्रिक एक्टिविटीज। और 64, देयर आर अ टोटल ऑफ 64 सर्कुलर चैम्बर्स, 64 सर्कुलर चैम्बर्स फॉर द योगिनीज। एन ओपन कोर्टयार्ड depicts the conception that yoginis tend to fly। और इसका साइंटिफिक महत्व, साइंटिफिक इंपॉर्टेंस ये है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल स्टडीज के लिए इस मंदिर को पहाड़ी पे बनाया गया, ऊंचाई पे, और खुला रखा गया है। ये भी बड़ी खास बात है। ये सेंट्रल इंडिया। अब आते हैं ईस्टर्न इंडिया टेम्पल्स। तो ईस्टर्न इंडिया टेम्पल्स इंक्लूड्स टेम्पल्स ऑफ ओडिशा, बंगाल एंड असम। इन ओडिशा मोस्ट ऑफ द टेम्पल साइट्स आर लोकेटेड एट पुरी एंड कोणार्क, एंड हियर शिखरास आर कंस्ट्रक्टेड इन कर्वी लीनियर शेप। क्योंकि ये नागरा में है ना, तो शेप शिखर का कर्वी लीनियर ही होगा, कर्वी लीनियर इन शेप। और गर्भागृह को उड़ीसा टेम्पल्स में देउल कहते हैं, देउल। तो बाकी जगह जो गर्भागृह है वो उड़ीसा में देउल है, और देउल के सामने मंडप है। तो मंडप को मंडप ना बोल करके जगमोहन कहा जाता है। तो यहां पे थोड़े अलग चीजें हैं, मतलब संरचना नहीं, स्ट्रक्चर तो वही है। तो देउल और गर्भागृह को देउल और मंडप को जगमोहन, और बाकी वही है, कर्विलिनियर, शिखरा मीटिंग अटॉप, सॉरी कर्विलिनियर टेम्पल टावर, शिखर भी बोले, हाँ ठीक है शिखर बोलिए। साउथ इंडिया में अभी नहीं है, हम साउथ इंडिया में विमाना बोलेंगे। और ये सर्कुलर आमलका। और इसके 3 एग्जांपल्स हैं, देखिए। पहला सबसे फेमस में से एक सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर, किंग नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ऑफ ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है। और इस मंदिर को ब्लैक पगोडा बोला जाता है। सन टेम्पल ऑफ कोणार्क को ब्लैक पगोडा बोला जाता है क्योंकि डार्क ग्रेनाइटिक चट्टानों का कंस्ट्रक्टेड आउट ऑफ डार्क ग्रेनाइटिक रॉक्स, एंड दिस टेम्पल imitates the mythological conception of
लॉर्ड सूर्य, सूर्य भगवान का ये माइथोलॉजिकल कंसेप्शन उतारा गया है धरती पे कि सूर्य भगवान ना वो आकाश में विचरण करते हैं रथ पे, और उनके रथ में 7 घोड़े और 12 पहिए, 6 और 6 12 पहिए लगे हुए हैं। तो इसी को पूरा उतार दिया गया है, पत्थर में उकेर दिया गया है, और ये इसीलिए जाइगेंटिक चैरियट के शेप में है। और ठीक है ना, अब यहां पे देखिए ये जो है ना, ये एक्चुअली मंडप है, असेंबली हॉल, जगमोहन बोलते हैं, मंडपा या जगमोहन। और ये जो है ना, ये सैंक्टम है मतलब था सैंक्टम। अब ये यहां पूजा पाठ नहीं होता है क्योंकि गर्भगृह और उसके ऊपर का जो टावर था ना, वो शिखर, वो कोलैप्स कर गया था, बहुत पहले टूट गया था, तो इसमें पूजा पाठ नहीं हो सकता, खंडित मंदिर है तो पूजा पाठ नहीं हो सकता है। और इस मंदिर में दीवार जो बेस है ना, दीवारों पर देखिए ये है एक्चुअल, तो ये जगमोहन और उसका शिखर, ये गर्भगृह का शिखर नहीं है, टूटा हुआ है। और ये जो पहिए लगाए गए हैं, क्योंकि रथ के पहिए हैं ना, तो ये जो पहिए बनाए गए हैं ये बड़े ही शानदार तरीके से बनाए गए, बड़े खूबसूरत है, वो तो एक अलग बात है। और ये सूर्य घड़ी भी है एक्चुअली, सन डायल भी है। और अगर धूप खिली हुई है, सूर्य देवता निकलते हैं और धूप खिलती है, अगर धूप खिली हुई है तो आप अपने घड़ी से समय भी बता सकते हैं। तो 24 आवर्स को देखिए, 24 आवर्स को 1 2 3 4, तो गड़बड़ हो गया, फिर से बनाता हूं। 4 5 6 7 8, ये क्या है? नहीं, 8 पार्ट्स में बनेगा, छोड़ी जाने दीजिए। मेरे को ज्योमेट्री मेट्री नहीं आती है, साइन थीटा कॉस थीटा पढ़े पता नहीं कितना जमाना हो गया। तो यहीं पे देख लेते हैं इसी में कि ये पूरे दिन भर को दिखाता है। और ये बड़ी वाली तीलियां देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बड़ी बड़ी तीलियां, थोड़ा देखिए 8 बड़ी बड़ी तीलियां हैं। तो 24 आवर्स इन अ डे, वी हैव 24 आवर्स इन अ डे, 8 बड़ी बड़ी तीलियां हैं, 8 स्पोक्स, इसको कर दीजिए डिवाइड, ये डिवाइड कर दीजिए तो 3 आवर्स आ गया। तो हर 2 बड़ी तीली के बीच में कितना डिफरेंस आएगा सूरज देवता का? 3, यहां से यहां तक धूप चलने में 3 घंटे बीतेंगे। तो 24 आवर्स डिवाइडेड बाई 8, तो 3 आवर्स। तो 2 तीलियों के बीच का जो यहां से यहां तक धूप का मूवमेंट होगा, यहां से यहां तक, इतने में कितने घंटे बीत जाएंगे आपकी घड़ी से? 3 घंटे बीत जाएंगे। और फिर इसको भी डिवाइड किया गया है आगे, इसको डिवाइड करेंगे ना तो 90 और 90, 3 आवर्स का मतलब 180 मिनट्स, 180 मिनट्स। तो 180 मिनट को 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये 90 मिनट्स आ गया। तो आधा आधा 90 90 मिलके 180, तो ये 90 मिनट है। और फिर देखिए ये और ये हो गया 3 आवर्स। बीच में ये तीलियां बनी हुई है, ये वाली लाइन, ये इसको डिवाइड करता है 90 मिनट्स पे और 90 मिनट्स। और हर तीली पे जब धूप गुजरती है तो ये तीली कह रहा हूं, ये जो तीली वाला बीड है ना, बीड 1 2 3 4 ऐसे करके, वो 3 मिनट का रिप्रेजेंटेशन है। तो 3 मिनट एक तीली एक बीड पे जब धूप गुजरती है तो 3 मिनट निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 30 बीट्स हैं, 30 बीट्स और 90 मिनट, तो कितने बीट्स? 30 बीट्स होंगे। और क्योंकि हर बीट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 मिनट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये एक्चुअली सूर्य घड़ी है, सन डायल। बस इतना समझिए कि सन डायल है। कैलकुलेशन मेरे को नहीं आता, मैं ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा, तो मैथ्स में मैं बहुत ही घटिया था, खराब था। और बाकी टेम्पल देखिए, ऐसा नहीं है कि सन टेम्पल सिर्फ उड़ीसा में ही है, बहुत सारे सन टेम्पल्स हैं, बहुत जगहों पे सन टेम्पल्स हैं। लेकिन जो बाकी 2 और नोटेबल है ना सन टेम्पल, वो है गुजरात में एक,
गुजरात में मोढेरा एक जगह है, मोढेरा में सूर्य मंदिर है, और एक कश्मीर में कभी जाना हो अनंतनाग जिले में तो वहां पर मार्तंड, मार्तंड मतलब भगवान सूर्य ही होते हैं, मार्तंड सूर्य मंदिर है जो कि रूइन टेम्पल है। और बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में उसने इसको मंदिर को डिस्ट्रॉय करवा दिया था। तो टर्किश इन्वेजन में कई टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए गए थे, ये हिस्टोरिकल सच्चाई है, इसको हम छुपा नहीं सकते हैं और जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि वो इन्वेडर्स थे, प्लंडरर्स थे, तोड़ देते थे, इस तरह बड़ी बड़े खूबसूरत खूबसूरत मंदिर तोड़ दिए गए। तो अब भी उस जमाने की बातें हैं, ठीक है ना, लेकिन भावनाओं को तो ठेस पहुंची थी। तो Sun Temple of Modhera and Martand Surya temple are other examples. And another very famous temple of Jagannatha, Odisha group of temple is Jagannatha temple, dedicated to Lord of the universe, Lord Jagannatha or Lord Vishnu or Lord Krishna. And here on Ratna Vedi, we have wooden images. This thing is very interesting. Wooden images. Instead of stone or metal images, we have wooden images of Lord Jagannatha and his elder brother Lord Balbhadra or Balrama and sister Subhadra. And every 12 or 19 years, these wooden images are ceremoniously replaced by other इमेजेस। तो हर 12 या 19 साल पे चंदन की लकड़ियों से फिर से नई मूर्तियां बना करके और अच्छे से सजा करके इन मूर्तियों को रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड जगन्नाथा टेम्पल इज ऑल्सो वेरी वेरी फेमस फॉर एनुअल रथ यात्रा, वर्ल्ड फेमस रथ यात्रा यहाँ पे होता है, और हर साल वो रथ निकाले जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो जगन्नाथा टेम्पल, इसके कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ये यहाँ पे देख लीजिएगा, मैं डिटेल्स बताते चल रहा हूं आपको लगातार। और ये देखिए, ये हैं वुडन इमेजेस ऑफ भगवान जगन्नाथा, हिज एल्डर ब्रदर बलरामा और बलभद्र, और हलधर भी बोला गया उन्हें, एंड सिस्टर सुभद्रा। एंड सिस्टर सुभद्रा वॉज मैरिड टू अ वेरी फेमस कैरेक्टर ऑफ महाभारत, बताइएगा। और ये टेम्पल बनाया था अनंत वर्मा ने, ठीक है। और लिंगराज मंदिर है, लिंगराज मंदिर बहुत फेमस है, देखिए यहाँ पे लिंगराज टेम्पल, और वो उड़ीसा ग्रुप ऑफ टेम्पल में ही आएगा। तो उड़ीसा ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में 3 बड़े फेमस है मंदिर, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क, जगन्नाथा टेम्पल ऑफ पुरी एंड लिंगराजा टेम्पल, कलिंगा स्टाइल लिंगराजा टेम्पल। और असम और बंगाल के टेम्पल्स में खास बात यह है, देखिए कि असम और बंगाल के टेम्पल्स को बनाने में मिट्टी, टेराकोटा का इस्तेमाल किया गया। इट अपीयर्स दैट टेराकोटा वाज द मेन मीडियम ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड व्हाट सर्वाइव्स नाउ, चूंकि जल्दी बचेगा नहीं, मिट्टी और ईंट का बना हुआ मंदिर है, मुख्य रूप से मिट्टी का। व्हाट सर्वाइव्स नाउ आर लेटर ब्रिक्स एंड कंक्रीट टेम्पल्स। तो शुरुआत वाले मंदिर तो मिट्टी के बने तो मिलेंगे ही नहीं ना, वो तो खत्म हो जाएंगे, गिर गए होंगे, खत्म हो गए होंगे। तो जो बाद वाले बने हैं ना, वो ईंट वगैरह के, वही बचे हुए हैं। जैसे an old 6th century sculpted door frame from the Parvatiya near Tejpur, and another few stress sculptures from Rangagora tea estate near Tinsukia in Assam bears witnesses to the import of the Gupta period। कहने का मतलब यह है कि बंगाल और असम के मंदिरों में आपको गुप्ता पीरियड का, नॉर्थ इंडिया के गुप्ता पीरियड का झलक दिखाई देगा उन मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में। लेकिन जो मटेरियल लिया गया वो मटेरियल मेनली टेराकोटा है, ठीक है। बाकी कुछ और डिटेल्स हैं वो आपको देखने होंगे। और बंगाल टेम्पल्स जो है ना, वो वंगा बोलते हैं, वंग से बंग हो गया, वंग स्टाइल। और इसमें दिस टेम्पल्स वर पैट्रोनाइज्ड मेनली बाय rulers of 2 important dynasties of Bihar and Bengal called Pala dynasty and Sena dynasty, ठीक है ना। and if you take example of these temples, we have a 9th century Siddheshwara Mahadeva temple in Barakar, Bardwan and Shikhara, which is crowned with large आमलका। यहाँ आमलक बहुत बड़ा है। शिखर crowned with large आमलका is from Pala style, Pala style। तो यहां हमें फ्यूजन मिल रहा है, पाला, सेना प्लस गुप्ता, इंस्पायर्ड बाय गुप्ता स्टाइल, गुप्ता पीरियड ऑफ टेम्पल्स। और कुछ और फैक्ट्स हैं। अब देखिए वेस्ट इंडिया टेम्पल्स, तो अभी हम रीजनल वेरिएशन में है नागरा के,
नागरा के रीजनल वेरिएशन में है। तो वेस्टर्न इंडिया टेम्पल्स में सन टेम्पल ऑफ मोढेरा विच इज वेरी वेरी फेमस टेम्पल, और इट बिलोंग्स टू वेस्टर्न इंडिया। ये गुजरात में है, मोढेरा में सन टेम्पल है। कोणार्क, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर है उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, वैसे ही मार्तंड मार्तंड सूर्य मंदिर कश्मीर में है, वैसे ये भी है सन टेम्पल ऑफ मोढेरा। तो बट basic plan of sun temple of Modhera is not square at base. This temple has number of projecting angles. तो यहां ढेर सारे projecting angles हैं, and if you see this temple from above, एरियल इसका जो आप देखेंगे, ड्रोन व्यू देखेंगे, तो ये मंदिर, इट टेम्पल्स लुक लाइक अ star shape or stellate form having so many projecting angles. So the most important characteristic feature of this temple, Sun Temple of Modhera, is having many projecting angles, that this entire temple looks like a star or stellate shape, and there is a beautifully constructed kund or water tank before this temple called Surya Kund. तो यहां पे हमें मिल रहा है Surya Kund in front of this temple, and this temple is so beautifully, so highly and so beautifully sculpted टेम्पल, बहुत खूबसूरती से तराशा गया है। तो सन टेम्पल ऑफ मोढेरा इन गुजरात विच इज डेडिकेटेड टू सन गॉड सूर्य देवता एंड सिचुएटेड, दिस टेम्पल इज एक्चुअली सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर पुष्पावती एंड बिल्ट इन 1026 तकरीबन, और 2025 1000 साल हो रहा है बने हुए, 1000 ईयर। तो 1026 बाय किंग भीम देवा ऑफ सोलंकी डायनेस्टी। तो गुजरात के सोलंकी डायनेस्टी के रूलर ने, भीम देवा ने इसको बनवाया था, बिकॉज सोलंकीज कंसिडर्ड देमसेल्फ सूर्यवंशी गुर्जरा और डिसेंडेंट्स ऑफ द सन गॉड सूर्य देवता। So Solankis were considered to be Suryavanshi Gurjara or descendants of sun god. The temple was so designed, and you know there is another very very important feature of this temple. इस मंदिर को इस तरह से बनाया गया है कि साल में 2 बार, विषु बोलते हैं हिंदी में, इक्विनॉक्स, जब ठीक 12 घंटे का दिन और ठीक 12 घंटे का रात होती है, तो उस दिन जब सनराइज होता है ना, तो सनरेज सीधे गर्भागृह के सूर्य देवता के इमेज पे पड़ती हैं सीधे, और फिर साल भर में दोबारा नहीं होता, सिर्फ 2 दिन होता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इक्विनॉक्सेस, हैविंग 12 hours of day and exactly 12 hours of night. So the temple was so designed, so beautifully, marvelously designed. क्या ज्योमेट्री आता रहा होगा साइन थीटा कॉस थीटा ना, कि शानदार बोला गया। और हम लोग बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का डेली लाइफ में क्या यूज है, भैया बहुत यूज है। नहीं आता है तो ना बोलो नहीं आता है, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मेरे को नहीं आता है, लेकिन जिनको आता है उनके लिए बहुत यूज है, बहुत इस्तेमाल है ना। So the temple was so designed that the first rays of the sun fell on the image of Surya, the sun god, at the time equinoxes. और देखिए पिलर्स, डोर फ्रेम्स, सीलिंग्स, क्या शानदार तराशा गया है। और ये तो अभी कुछ भी नहीं है, अगला जब देखेंगे ना, हालांकि वो जैन मंदिर है तो क्या हुआ, मंदिर तो है ना, और हम तो टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ रहे हैं, रिलीजियस डिवीजन थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। ये the most beautiful of all the temples of our country belongs to this Dilwara Jaina temples. Dilwara, constructed completely of white marble, सफेद संगमरमर मकराना, locally available marble से बनाया गया है। और ये मंदिर जैना टेम्पल्स हैं, लेकिन अभी ये अंदर जाएंगे, मैं तो गया हूं यहाँ पे, आप जाएंगे ना अंदर तो मतलब आप ऐसे बस घंटों देखते रह जाएंगे, देखते ही रह जाएंगे, मन ही नहीं करेगा वहां से आने का। और खास तौर पे छत, गर्दन दुख जाएगी ऐसे ऊपर देखते देखते देखते, भैया क्या खूबसूरत, कैसे कटिंग किया होगा, कैसे तराशा बनाया गया होगा। लेट्स हैव अ लुक। ओह माय गॉड, दिस इज व्हाट वी नोन एज इनक्रेडिबल इंडिया। अतुल्य भारत, अविश्वसनीय भारत।
समझ में नहीं आता है भैया ये कैसे बना होगा। देख लीजिए खुद अपनी आंखों से, ये छत है वो भी, क्या मतलब इंट्रिकेट कार्विंग है, कितनी बारीक मिलीमीटर के हिसाब से कार्विंग किया गया है, तराशा गया है, स्कल्पचरल आर्ट है, क्या लेवल ऑफ एक्सेलेंस है ना, इनक्रेडिबल है। ये सीलिंग मतलब विश्वास नहीं होता कि ये कारीगर आदमी बनाए होंगे, लगता है कि साक्षात देवता लोग बना करके चले गए होंगे, भगवान लोग खुद ही बना करके चले गए हैं, ऐसा खूबसूरत है, क्या मार्वलस है, मतलब दंग रह जाता आदमी देख करके। Dilwara Jaina temples. So 5 Dilwara Jaina temples are a group of Shvetambara. Is Shvetambara. So we have two sects of Jainism, Digambara and Shvetambara. So these temples belong to the group of Shvetambara temples located in Sirohi district of Rajasthan, and they date between 11th and 16th century and belong to Maru, Rajasthan, है ना, और Gurjara. Maru Gurjara architecture and famous for their use of pure white marble, milky white marble and intricate, बड़ी ही बारीकी से intricate marble carvings. Like we have Vimal Vasahi temple is the earliest constructed, followed by Luna Basahi temples. So ये मंदिर है, दिलवाड़ा जैन टेम्पल अद्भुत है, अविश्वसनीय है. एंड वी हैव सोमनाथ टेम्पल of Gujarat, dedicated to Lord Shiva, and earlier this temple was destroyed in the year 1025 CE Common Era. This temple was destroyed during the attack of Mahmud of Ghazni. उसने इस मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था. उसके पहले का एविडेंस हमारे पास इसका हिस्ट्री नहीं है कि एग्जैक्टली ये मंदिर कब बना था, लेकिन इतना हम जानते हैं कि इन द ईयर 1025 कॉमन एरा दिस टेंपल was destroyed by Mahmud of Ghazni, that invader and plunderer. So temple was constructed several times in the past, and after repeated destruction of multiple Muslim invaders and rulers. They were actually Turkish, so it would be appropriate to use Turkish instead of Muslim, though they were Muslims. Invaders and rulers, notably starting with an attack by Mahmud Ghazni in January 1025, actually not 1026, 1025, थोड़ा बहुत plus minus हो जाता है. So Somnath temple was constructed in Maru Gurjara, और दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स भी मरु गुर्जरा है. Style of Hindu temple architecture. The contemporary Somnath temple's reconstruction was started under the orders of the first Deputy Prime Minister of India, Sardar Vallabhbhai Patel, after receiving approval for construction from Mahatma Gandhi. हालांकि जब ये मंदिर रिकंस्ट्रक्ट होना शुरू हुआ तब तक महात्मा गांधी शहीद हो चुके थे. अब आते हैं another style of temple architecture that had developed in the regions of South India called Dravida style of temple architecture. द्रविड़ा, तो दो बेसिक डिफरेंस है. बेस पे स्क्वायर है यूजुअली, और जो शिखर है यानी कि विमान है, इसको विमान कह रहे हैं, और यही नॉर्थ इंडिया में क्या है, नॉर्थ इंडिया में यही शिखर है, विमान. और ये विमान इट राइजेस अपवर्ड, इट गिव्स इंप्रेशन लाइक अ स्टेप्ड पिरामिड, ये शेप दे रहा है. और फिर ये octagonal small stupika like armless, then we have a kalash and flag. So this part is called GG, यानी कि गर्भा गृह, और sanctum sanctorum, and this tower constructed exactly above the sanctum sanctorum is called Vimana, or Shikhar of North India, surmounted by octagonal small stupika like Amlaka and Kalash, and assembly halls constructed before the sanctum sanctorum. And here we have a image of mount or Vahana. तो ये नंदी जी हैं, तो जाहिरन तौर पे ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित किया गया है. एंड मेन एंट्री गेटवे टू द टेंपल कॉम्प्लेक्स कॉल्ड गोपुरम. तो ये द्रविड़ा स्टाइल. अब हम आगे द्रविड़ा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर. तो द्रविडियन आर्किटेक्चर
emerged in the southern part of Indian subcontinent or South India. It consists primarily of temples with pyramid shaped, ये ध्यान रखना है, pyramid shaped towers and are constructed of sandstone और ग्रेनाइट. तो पूरा पेनिनसुलर इंडिया एक्चुअली ग्रेनाइट ही ग्रेनाइट तो है, तो वहां के ज्यादातर मंदिर ग्रेनाइट्स के ही बने हुए हैं. मेजॉरिटी ऑफ टेम्पल्स आर लोकेटेड इन सदर्न इंडियन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना एंड आंध्र रीजन. और देखिए द्रविडियन टेम्पल्स का जो डेवलपमेंट है ना वो एक दिन में तो हुआ नहीं है. तो फॉर द फर्स्ट द रूलर्स हु बिलोंग टू Pallava dynasty. So the rulers of Pallava dynasty were the first who got constructed, who started construction of Dravidian style of temple architecture. And there was a Pallava ruler of in the beginning years of 7th century. Pallava ruler in the beginning years of 7th century named Mahendravarman I. Mahendravarman I was the first ruler of all South Indian rulers who belonged to different dynasties who started construction of temples. So at a place called Mandagapattu. तो महेंद्र वर्मन ने पहाड़ी को काट के मंदिर बनवाया. एंड दोस रॉक cut temples patronized by Mahendra Varman is called Mandapa. Rock cut temples called Mandapa or Mahendra Varman style. And around 644 Common Era, when Mahendra Varman I of Pallava dynasty passed away, and he was succeeded by his son Narsimha Varman I. And Narsimha Varman I, who hold the title of Mamalla. Narsimha Varman I, Mamalla or Mahabali. तो नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने जो मंदिर बनवाने शुरू किए वो एक्चुअली एक ही पत्थर को काट छांट करके बनाए गए थे, कॉल्ड मोनोलिथिक. तो पहले फेज में साउथ इंडिया में रॉक कट टेम्पल्स बने, महेंद्र वर्मन ने बनवाए, कॉल्ड मंडपा. सेकेंड फेज में मोनोलिथिक टेम्पल्स बने. मोनोलिथिक टेम्पल्स हियर मींस engraved, not constructed, tarasha gaya hai, chhata gaya hai, engraved out of single block of stone. Mono means single, lithic means block of stone, constructed or sculpted, actually sculpted out of single block of stone. तो second stage में जो नरसिम्हा ने पैट्रोनाइज किया, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने मोनोलिथिक टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन शुरू किया और इनको नाम दिया गया RATHA, रथ बोला गया. एंड then the freestanding temples of छोटे smaller dimensions. So freestanding temples of smaller dimensions were constructed by the ruler of Pallava dynasty named Raj Singh. तो राज सिंह ने बनवाना शुरू किया फ्री स्टैंडिंग temples of smaller dimension. Freestanding temples of smaller dimension. Narsimha Varman II, who hold the title of Raj Singh. And then we have Nandi Varman IV, Nandi Varman style. तो पल्लवास में, द्रविडियन में पल्लवास और चोलास का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है. तो पल्लवास में 4 रूलर, महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट मामल्ला, नरसिम्हा वर्मन सेकंड राज सिंह एंड नंदी वर्मन. पहले बने मंडपा और केव टेम्पल्स. देन सेकंड स्टेज इसमें बने मोनोलिथिक टेम्पल्स कॉल्ड रथास, एंड देन फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स ऑफ स्मॉलर डायमेंशन कॉल्ड राज सिंह स्टाइल, एंड फ्री स्टैंडिंग टेम्पल्स ऑफ लार्जर डायमेंशन और नंदी वर्मन स्टाइल. तो महेंद्र वर्मन स्टाइल पल्लवास में 4, महेंद्र वर्मन, मामल्ला, राज सिंह एंड नंदी वर्मन. और यहीं के बाद ये पल्लवास का टेंपल कंस्ट्रक्शन ऊपर उठा दिया, थ्रेशोल्ड पे लेके चले गए चोलास, बिकॉज पल्लवास इन द ईयर 850 कॉमन एरा और सीई, Pallavas were replaced by the imperial Cholas, and imperial Chola rulers started construction of massive temples, huge temples उन्होंने बनवाना शुरू किया था. देखिए, और ये जो पल्लवास ने टेम्पल्स को सजाया ना, स्कल्पचरल आर्ट, तो माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल स्टोरीज लिया गया
जैसे यहां पे मां गंगा का अवतरण, गंगा जी का अवतरण दिखाया गया, डिसेंट ऑफ गंगेज, डिसेंट ऑफ गंगेज के राजा भगीरथ थे, दशरथ जी के पूर्वज, उन्होंने तप किया मां गंगा को धरती पे लाने का। तो मां गंगा तो तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा वेग, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगा तो संभाल नहीं पाएगा कोई, और तो पता चला कि शिव जी ही संभाल सकते हैं। तो राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की और शिव जी ने बोला ठीक है, आप बोलो मां गंगा को डिसेंड करने का, मैं उनको अपनी जटाओं में उलझा लूंगा। तो जटाओं में आ जाएंगी तो उनका वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो इंपैक्ट मिनिमाइज हो जाएगा, वरना धरती पे कोई संभाल नहीं पाएगा। तो गंगा अवतरण और डिसेंट ऑफ गंगेज, मां गंगा, एंड लॉर्ड कृष्णा रेजिंग माउंट, क्या बोलते हैं, गोवर्धना, बोल रहा था, माउंट गोवर्धना, गोवर्धना पर्वत को अपने छोटी उंगली से, सबसे छोटी कनिष्ठा बोलते हैं ना, से उठा दिया पूरा गोवर्धन पर्वत, लोगों और जानवरों को, गायों को बचाने के लिए। और इसमें दिखाया गया है ये अर्जुनास पिनांस, ये अर्जुन हैं जो तपस्या कर रहे हैं भगवान शिव का, और देखिए इनके रिप्स निकल आए हैं सूख करके, ये कई दिनों से इसका मतलब तपस्या कर रहे होंगे, इन्हें भगवान शिव का पाशुपत अस्त्र चाहिए था। तो हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज को इनग्रैप किया गया मंदिरों, पल्लवा रूलर्स के थ्रू, और उन्होंने मंदिरों को सजाने के लिए इन थीम्स का इस्तेमाल किया, जैसे गंगा अवतरण, लॉर्ड कृष्णा रेजिंग गोवर्धना माउंटेन, एंड पिनांस और अर्जुनास पिनांस। और ये चोला रूलर्स, देखिए क्या मैसिव टेम्पल्स बनवाना। तो पल्लवा स्टाइल ऑफ टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाज फर्दर adopted and developed by the rulers who belong to Chola dynasty, and Chola rulers started construction of massive temples with lofty shikharas called Vimana. That's why shikharas are referred to as Vimana. देख रहे क्या ऊंचा है, एंड दिस इज द टॉलेस्ट रिवर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला रूलर राज राजा फर्स्ट in the year 1010 common era. तो कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस टेम्पल हैज बीन कंप्लीटेड इन 1010 कॉमन एरा, एंड 2020 में इसका 1000 साल हो गया था, 1006 साल अब तक हो चुका है। और टॉलेस्ट रिवर टेम्पल है ये, टॉलेस्ट रिवर टेम्पल। और लार्जेस्ट तो अभी एक नया बना हुआ दिल्ली में है, दिल्ली में स्वामी नारायण अक्षरधाम टेम्पल इज द लार्जेस्ट टेम्पल ऑफ आवर कंट्री, बट दिस टेम्पल इज स्टिल द टॉलेस्ट रिवर टेम्पल कंस्ट्रक्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय चोला रूलर Raj Raja first in 1010, and another temple though of a smaller dimension was constructed by Raj Raja's son Rajendra first Chola, called Gangai Konda Cholapuram temple, and Gangai Konda Cholapuram temple is more beautiful than this previous one, Brihadeshwara temple or Raj Rajeshwara temple या चोलेश्वर, इसको पेरिय कोविल भी बोलते हैं, बृहदेश्वरा, राज राजेश्वरा या पेरिय कोविल, ग्रेनाइटिक रॉक से। और ये भी ग्रेनाइटिक रॉक से ही बना है, लेकिन ये ज्यादा खूबसूरत है पहले वाले से, इतना मैसिव तो नहीं है लेकिन ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ पे देखिए नंदी जी, तो दोनों ही टेम्पल भगवान शिव को है, तो नंदी जी तो होंगे ही होंगे, व्हीकल हैं भगवान शिवा के। तो अर्ली और चोला की शुरुआत हुई ना इस तरह के टेम्पल्स से, देखिए, और कहां पहुंच गए, ये लॉफ्टी टेम्पल्स बनवाना शुरू किया। तो विजया चोलेश्वरन टेम्पल, श्रीरंगम रंगनाथा स्वामी टेम्पल्स एंड वैकुंठ पेरुमल टेम्पल्स आर अर्ली चोला टेम्पल्स। सो याद रखिएगा, विजयालया चोलेश्वरम, Srirangam, Ranganatha Swami, and Vaikunt Perumal temple. So these temples are the early Chola temples, but Chola rulers got constructed huge or massive temples with lofty vimanas called Brihadeshwara temple and Gangai Konda Cholapuram temple. और फिर देखिए जो बृहदेश्वरा टेम्पल है ना, ये भगवान शिव को तंजावुर तमिलनाडु में है, मैंने आपको बोला कि पेरिय कोविल कहलाता है, राज राजेश्वरा या सिंपली राज राजेश्वरम, एंड इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेम्पल इन इंडिया, बिल्ट बाय राज राजा फर्स्ट चोला and completed in 1010 AD, and the temple turned 1000-year-old in 2010, and the temple is a part of, this one is interesting, this temple is the part of UNESCO World Heritage Site known as Great Living Chola Temple, Great Living Chola Temple. और बृहदेश्वरा temple, the temple has बृहदेश्वरा में ही, the temple has frescoes painting, wall painting on the inner walls of गर्भा गृह। तो इसमें वॉल पेंटिंग भी है और भगवान शिव को अलग अलग रूपों में पेंट
किया गया है. The temple has chola frescoes on the walls around the sanctum sanctorum portraying Lord Shiva in action, like Lord Shiva destroying demonic force. राक्षसों के किलों को तोड़ते हुए भगवान शिव को दिखाया गया है और भगवान शिव का डांसिंग फॉर्म नटराज रूप दिखाया गया है. एंड ऑल्सो लॉर्ड शिवा इज सेंडिंग अ व्हाइट एलिफेंट टू ट्रांसपोर्ट अ डिवोटी डायरेक्टली टू द हेवन. एक भक्त है भगवान शिव का और उसको साक्षात सीधे सशरीर स्वर्ग पहुंचाने के लिए भगवान शिव ने एक सफेद हाथी भेजा है. ऐसा पेंटिंग में बनाया गया है. ठीक है. और गंगईकोंडा Cholapuram temple. This temple, Gangaikonda Cholapuram temple, built during medieval India and was erected as the capital of Cholas. Capital of Cholas by Rajendra Chola first, son of Rajaraja. Rajendra Chola first, son of Rajaraja, and the great Chola was the great Chola who conquered large area in South India, and he was such a powerful and brave ruler. He made his reach up to Sri Lanka, Bangladesh, Sumatra, Kadaram and Cambodia. रौंद के रख दिया South Asia, Southeast Asia को बंदे ने. And the temple of Lord Shiva at this place, Gangaikonda Cholapuram, is next only to the Brihadeshwara टेम्पल. तो बृहदीश्वरा टेम्पल तो बहुत मैसिव है. ये उतना तो नहीं है बृहदेश्वरा टेम्पल जितना विशालकाय तो नहीं है, और बृहदेश्वरा टेम्पल तंजावुर में है, तंजौर. लेकिन ये जो गंगई कोंडन टेम्पल है ना, ये मूर्ति कला के हिसाब से बृहदेश्वर टेम्पल से ज्यादा खूबसूरत बन पड़ा है. और ये है रीजनल वेरिएशन. तो जो रीजनल वेरिएशन है ना पांड्या टेम्पल्स में, जैसे मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरै, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर है, तो पांड्या रूलर्स ने क्या किया, चोला के बेसिक पैटर्न को ही पलट दिया. चोला रूलर्स emphasized, listen to me carefully, Chola rulers emphasized more on tallness of Vimana of Gopuram. Garbhagrihi. Chola rulers insisted more on tallness of Vimana of Garbhagrihi, while on the other hand, Pandya rulers, they emphasized more on tallness of Vimana, tallness of Gopuram. तो इन्होंने पूरा पैटर्न ही पलट के रख दिया. किन्होंने? पांड्या रूलर्स जो बिलोंग करते थे पांड्या डायनेस्टी को, तो उन्होंने पूरा टॉलनेस गोपुरम के शिखर पे या गोपुरम के विमान को ले लिया, और गर्भागृह के ऊपर जो विमान बनाया वो शॉर्टर, वो छोटे बनाए और टॉलर विमानास ऑफ गोपुरम कर दिया. सो पैटर्न वाज एक्चुअली रिवर्स बाय द रूलर्स हु बिलोंग टू पांड्या डायनेस्टी. तो एंड द बेस्ट अवेलेबल स्पेसिमेन इज मीनाक्षी अम्मा टेम्पल, पार्वती जी को बोलते हैं, मीनाक्षी अम्मा टेम्पल ऑफ मदुरै. और एक गोपुर यहां पे देख रहे हैं, 1 2 3 कई गोपुरम दिखाई दे रहे हैं. तो मीनाक्षी टेम्पल ऑफ मदुरै में मल्टीपल गोपुरम है, multiple gopuram instead of single gopuram like in case of cholas. So Pandya emphasize more on tallness of Vimana of Gopuram rather than tallness of Vimana of Garbhagrihi. And the best example of Pandyan temple is Meenakshi Amma temple located at Madurai and dedicated to Meenakshi, an incarnation of goddess Parvati. माँ पार्वती का अवतार रूप है दक्षिण भारत में, जिन्हें मीनाक्षी नाम दिया गया है. And then we have Vijayanagara temples as the regional variation under Dravidian style of temple architecture. So Vijayanagara temples, the rulers who belong to Vijayanagara dynasty, they got constructed beautiful temples like, and this temple which is called swing pavilion. Actually ये मंदिर नहीं है, ये मंडप के pillars हैं, मंडपा, pillars of मंडपा. और ये pillars पता नहीं कैसे बनाए गए जानते हैं? ये इन पिलर्स पे जब आप स्ट्राइक करेंगे ना, कुछ आवाज करें, कुछ इसमें चोट करेंगे हल्का सा, तो यहां से म्यूजिक निकलेगा. 7 सुर, 7 नोट्स निकलते हैं, 7 सुर निकलते हैं, उनको बोलते हैं सारे गामा पाधानी, सारे गामा पाधानी. ना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ना तार है, ना सितार है, ना गिटार है, फिर भी पता नहीं कैसे बनाया गया है कि ये 7 सुर निकलते हैं. तो कुछ समझ ही में नहीं आता है भैया बनाए कैसे. तो एक चीज समझ में आती है, ओ माय गॉड, ये मेरा इनक्रेडिबल
इंडिया, ये मेरा अतुल्य अविश्वसनीय भारत। और यहां पे देखिए पिलर्स जो बनाए विजयनगरा टेम्पल्स में, पिलर्स को हॉर्सेस का शेप दिया गया है, घोड़ों का शेप दिया गया, और तेलुगु में घोड़ों को बोलते हैं कुदिरई, कुदिरे। तो हॉर्स डॉल और कुदिरई गुम्बे के विजयनगरा। आप देखिए ये जैसे है विजयनगरा टेम्पल में ये रथ है, ये भगवान विठल, भगवान विष्णु को विठल कह रहे हैं, विठल स्वामी का रथ है जिसे कल्लिना रथ कह रहे हैं। और ये कल्लिना रथ आपके पॉकेट में पड़ा हुआ है किसी INR बैंक, इंडियन नेशनल रूपी बैंक नोट्स पे। 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100, 200, 500 खंगाल डालिएगा, देखिएगा कौन से बैंक नोट पे INR, ये INR पे ये कल्लिना रथ है। कमेंट करके बताइएगा, देखता हूं जो जो सवाल पूछा बताइएगा जरूर। इससे ना हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो हम अगर पढ़ा रहे हैं तो फिर हमारे स्टूडेंट भी बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं। और संभव है, मैं कह रहा हूं आपसे कि बिल्कुल संभव है, हमारी और आपकी मिल करके जो मेहनत है ये आपका सिलेक्शन कराएगी। ठीक है, तो विजयनगर टेम्पल्स में कल्लिना रथ, भगवान विठल का रथ। और देखिए उसके बाद है होयसला टेम्पल्स। तो होयसल राज्य के मंदिर, आप ये भी मंदिर बड़े जबरदस्त हैं भाई साहब, बहुत जबरदस्त मंदिर है। देखिए होयसला टेम्पल्स डार्क ग्रेनाइटिक रॉक्स के बनाए गए। भगवान होयसलेश्वर इनके क्या कहते हैं कुल देवता हैं, भगवान शिव को ही होयसलेश्वर बोला जा रहा है। तो होयसल टेम्पल्स आर सो ब्यूटीफुली कार्व्ड, intricately carved. These temples are actually intricately carved temples, and this temple complex grew extremely large and complex। और इसका जो बेसिक पैटर्न है ना वो स्टार शेप है। एरियल व्यू आप देखेंगे तो स्टार शेप है, हैविंग सो मेनी प्रोजेक्टिंग, मल्टीपल प्रोजेक्टिंग एंगल्स, मल्टीपल प्रोजेक्टिंग एंगल्स हैं ढेर सारे। और इसी से ये मंदिर बहुत खास हो जाता है कि ये तारे के जैसे हवा में ऊपर से देखने पे तारे के जैसे दिखाई देता है। स्टिलेट बोलते हैं इसको, STELLATE, या स्टार, स्टार शेप्ड, स्टिलेट या स्टार शेप्ड। एंड हियर वी हैव अ कंपेरेटिव अकाउंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन के नागर और द्रविड़ा टेम्पल्स में कुछ कुछ अगर हम पैरामीटर्स ले लें तो हम आराम से कंपेयर कर सकते हैं। जैसे टेम्पल टावर, तो टेम्पल टावर नागर में कर्वीलिनियर है और द्रविड़ा में पिरामिड की तरह है, स्टेप पिरामिड। फिर अगर आमलक लेंगे तो नॉर्थ में आमलक सर्कुलर है और साउथ, नॉर्थ में आमलक सर्कुलर है और साउथ में ऑक्टागोनल स्मॉल स्तूपिका के जैसे। अगर आप बाउंड्री वॉल लेंगे तो नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स, ज्यादातर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स बाउंड्री वॉल में एनक्लोज नहीं कराए गए हैं, लेकिन साउथ इंडिया के टेम्पल्स बाउंड्री वॉल में एनक्लोज कराए गए हैं, एसेंशियली इनक्लोज इन अ बाउंड्री वॉल। नॉर्थ इंडिया, अगर नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स लेंगे तो ज्यादातर टेम्पल्स बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स के नहीं है, तो टेम्पल्स वर नॉट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया जा रहे हैं तो अभी देखा होयसलेश्वरा टेम्पल क्या कॉम्प्लेक्स टेम्पल है। तो साउथ इंडियन टेम्पल्स ग्रू एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। तो अगर आप पैरामीटर और भी पैरामीटर ले सकते हैं, ये तो 3-4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, तो इस तरह से आप मेंस के क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। सो राइट अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑन बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन नागरा एंड द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है ना, तो ये हो गया देखिए नागर और द्रविड़ा। और हमने शुरू में डिस्कस किया कि कर्नाटका में नागरा और द्रविड़ा का फ्यूजन होता है, और नागरा और द्रविड़ा का फ्यूजन हो करके एक नया स्टाइल बनता है वेसरा टेम्पल आर्किटेक्चर। एंड these temples were patronized by the rulers who belonged to Chalukya and Rashkuta dynasty, and these temples were mainly constructed in Karnataka region, and that's why these temples are also referred to as Karnataka style. So Vesra style because of hybridization or fusion, and Chalukya Rashkuta style because patronized by Chalukya and Rashkuta rulers, and Karnataka style because these temples were constructed in the Karnataka region. और इसमें देखिए ये मंदिर जो है ना, तो शिखर जो है ना ये सिलिंड्रिकल शेप ले लिया है। तो वेसरा में जो बेसिक प्लान है, तो बेसिक प्लान रिजेंबल करता है द्रविड़ा से, लेकिन शिखर सिलिंड्रिकल है इंस्टेड ऑफ पिरामिडिकल। और जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स हैं, डेकोरेशन, तो डेकोरेशन है
नागर स्टाइल का डेकोरेशन है। तो ये खास बातें हैं। अब टेम्पल्स का अगर हम फंक्शन देखेंगे ना मेन एग्जामिनेशन के लिए, तो टेम्पल का फंक्शन देखेंगे। सो वी हैव नंबर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फंक्शंस परफॉर्म बाय आवर टेम्पल्स इवन टुडे। तो सेंटर्स फॉर मेनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लाइक टेम्पल बाजार भी होते हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्स होते हैं, और बायर्स और सेलर्स होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं। फिर पुजारी लोग होते हैं जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और क्राफ्ट एक्टिविटीज के लिए बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे, शिल्पकार जैसे गार्डनर्स होते हैं, कारपेंटर्स, पॉटर्स, मेटल स्मिथ एंड अदर्स। तो सैकड़ों सैकड़ों लोगों को रोजगार मिल जाता है, बाजार डेवलप कर जाता है टेम्पल्स। और टेम्पल्स के चूंकि चढ़ावा आता है, टेम्पल के पास पैसा होता, तो टेम्पल्स बैंकर्स का भी काम करते थे, और टेम्पल्स लोगों को उधारी बिजनेस चलाने के लिए उधार दे सकते थे, हालांकि ब्याज पर, या आप चाहें तो आपके पास ज्यादा पैसा है तो टेम्पल में डिपॉजिट कर दीजिए, वो आपको सर्टेन ब्याज इंटरेस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। इससे टेम्पल्स होने से कैश का फ्लो, नकदी का फ्लो बना रहता है, कैश फ्लो ऑफ कैश, एंड स्ट्रेंथन मनी इकोनॉमी एंड कॉमर्शियल एंड रिलीजियस सेंटर्स। आज भी देख लीजिए कि जितने भी टेम्पल्स हैं हमारे, वो कैश के फ्लो को मेंटेन करते हैं। सो टेम्पल्स इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्पल्स इंडियन इकोनॉमी के लिए। ये कैश के फ्लो को मेंटेन किए रहते हैं, इसीलिए इंडिया में रिसेशन, मंदी आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। हमारे टेम्पल्स, हमारे मॉस्क, हमारे चर्चेज और ये गिरजा या गुरुद्वारे, ये ऐसी गतिविधियों के ये सेंटर ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो इकोनॉमिक फंक्शन भी करते रहते हैं। इसीलिए इंडिया में जो फेस्टिवल्स हैं हमारे, दिवाली, दशहरा, ईद और इस तरह के फेस्टिवल्स या टेम्पल स्ट्रक्चर्स, पूजा पाठ के स्थल, ये इंडिया को रिसेशन में जाने से रोक देंगे। चाहे यूरोप और अमेरिका रिसेशन में खत्म हो जाएगा ना, तो भी इंडिया सरवाइव करेगा। इतना इंपॉर्टेंस है हमारे टेम्पल्स, मॉस्क और चर्चेज और गुरुद्वारास का और फेस्टिवल्स का। तो हम फेस्टिवल्स में पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, हम फेस्टिवल में जो पैसा खर्च करते हैं ना, वो इकोनॉमी को बूस्टअप करता है, इकोनॉमी को ग्रीजिंग करता है। एंड मेनी टेम्पल टाउन्स ग्रीव, टेम्पल टाउन्स ग्रीव एज द बिग अर्बन सेंटर्स and thus supported increasing urbanization। तो ये अर्बनाइजेशन को भी बढ़ाता है। जैसे अभी अयोध्या जी में मंदिर बना ना, रामलला का मंदिर बना, तो उससे अयोध्या के आसपास के एरियाज में जमीनें हुई, जमीनें खरीदा, ट्रांजैक्शंस हुए, बिजनेस एक्टिविटीज बढ़ी, तो अब अयोध्या जी का अर्बनाइजेशन अपने आप ही बढ़ गया। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक फंक्शंस है, एंड अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक फंक्शंस वी हैव नंबर ऑफ सोशियो कल्चरल फंक्शंस परफॉर्म बाय आवर टेम्पल्स, लाइक जैसे टेम्पल मीटिंग प्लेस ऑफ ग्राम एंड अर्बन पंचायत। तो ग्राम पंचायत और शहरी पंचायत, नगर निगम वगैरह का मीटिंग भी पहले के जमाने में मंदिरों में हुआ करता था। एंड स्टेबिलाईजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर, मंदिर होते हैं मोरालिटी को मेंटेन करते हैं कि लोग गलत रास्ते पे ना जाएं, और जो आदमी बड़ा हो रहा होता है तो उसको समझाया जाता है कि देखो ये गलत काम मत करना, भगवान नाराज हो जाएंगे, ईश्वर अल्लाह नाराज हो जाएंगे। तो इससे जो पर्सनालिटी है जो डेवलप हो रहा है उसका स्टेबिलाईजेशन होता है। सो स्टेबिलाईजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी एंड रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर परफॉर्म बाय आवर टेम्पल्स। एंड वेन्यू टू मार्क फेस्टिविटीज, तीज त्योहार आप मना सकते हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में बहुत सारे लोग शादी करते हैं, मैरिजेस एंड डांस एंड म्यूजिक और इवेंट, डेथ ऑफ अ लव्ड वंस। तो जब अपने प्रिय लोगों का डेथ हो जाता है तो लोग बड़े दुखी होते हैं, तो उस समय मंदिर और मस्जिद में जाने से मन की शांति, काम ऑफ हर्ट, मन की शांति मिलती है। एंड ऑल्सो सोशल स्टेबिलिटी एंड प्रमोशन ऑफ मोरालिटी, सोशल स्टेबिलिटी एंड promotion of morality. So these are a very important economic and socio-cultural functions performed by our temples. So this is all about temple architecture and sculpture.